So the entire objective and agenda of this particular session is to discuss on the roadmap of Marketing 4.0. This Marketing 4.0 is a topic which has been derived by Philip Kotler, who is a marketing guru across. Okay, so when I talk about a Marketing 4.0, it means how does a data meet with your technology. So when we talk about data, so we all are sitting on a huge data. So data could be in the form of email, data could be in form of your social media following, data could be in a form of your visiting card, data could be in a form of the contact stored with you right now. So this all data and science, when we use it, becomes a Marketing 4.0. So I start with a very specific quote which says that during post-COVID-19 and during this era of digital, during this era of social distancing, and during this particular era of post-COVID, where businesses are not going to be the same. So the time when we got into this particular era, आज से 7 दिन पहले जिस तरीके का situation था, and as lockdown is now being getting more liberal, so situations are not going to be the same. Okay, so tomorrow when you step out of the businesses of your houses and you will join your businesses, offices, you won't see the situation to be the same. It would be a mirror image कि जहाँ पे हम छोड़ के आए थे और जहाँ हम जा रहे हैं, it's going to be all different. So it's a quote which says, if you can't control your data, you cannot control your business now. So the entire business is now going to revolve around with the data. Data which is your own, data which you know, and data which knows you as well. So it could be a customer data, it could be a prospect potential customer data, it could be a client, it could be their employees, it could be your employees, and it could be the industry data, whatever we have. So now let's get down to the topic. What is Marketing 4.0? So Marketing 4.0 is a collaboration of a data and a technology. Okay, what does this mean is you will have to take your data and collaborate that particular data with the technology, so that you can reach out to your people with communication. Okay, जब आप डेटा को टेक्नोलॉजी के साथ में यूज करते हो तो आप अपने कस्टमर के साथ में एंगेज होके रहते हो. So which will help you to do a lot of lead generation campaigns, which will help you to do a lead follow-up, because the time when we closed down, we had a lot of lead. We tried to reach out to these particular people, but people were not interested because life is more important at this point of time. They were having their own operational challenges, they were having their own salary challenges, they were having their own recovery challenges. So is voice the only data? कि हमने टेलीफोन उठाया, कस्टमर को कॉल किया, that is the only way? No, that's not going to be the way. Okay, now we will have to start using CRM. CRM का पहले जो definition हुआ करता था, that was called customer retention management, but it has got changed now. Okay, CRM का अब definition होगा customer retention management, because no customer is interested in maintaining a relationship with you. What is more important is how do you retain a relationship with your customer. Okay, so we will have to use a technology so that we are able to retain our customer. Okay, how do you retain a customer? By being continuously in touch with them and doing a communication. But communication can just not be a sales communication. कि आप मेरे से ये ले लो, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा प्रोडक्ट क्या मिलता है, that's fine, that's fairly okay. But communication will have to be very, very innovative. It could be organization centric, it could be a product centric, it could be your culture centric, it could be your industry centric as well. It could also be knowledge centric as well. So when you do this kind of a communication, what happens is customer becomes engaged. जब आप किसी को सेल करने के लिए हर बार चले जाते हो, people don't like to be sold, people like to buy. पहले हुआ करता था जहां पे आप लोगों को जाके सेल कर सकते थे, but people are smart, you are smart, I am smart, we don't like to be sold, we want to be informed, and we will take our own decision कि हमको क्या चीज लगती है कि हमने क्या चीज करनी है. So let's move out towards the next slide, which talks about new age customer behavior and the modern marketing. So marketing had been there right the day we breathed for the first time. जब हम पैदा हुए थे तभी मार्केटिंग थी, आज भी मार्केटिंग है, बट मार्केटिंग ऑडियंस चेंज हो गया है. जब when we were born, we used to market it to our mom. When we are hungry, we used to cry because we wanted to be fed. जब हम थोड़े बड़े हो गए, we started crying because we demanded something from our parents.
जब हम थोड़े और बड़े हो गए, पेरेंट दे डिड अ ट्रांजैक्शन विद सेइंग दैट कि बेटा पढ़ाई में इतने मार्क्स लेके आ जाओ, आप ये कर लो, मैं आपको ये दिला के दे दूंगा. So during the time when we were in a growing phase, the marketing was very internal, was with families. But as we moved forward, अब ये marketing external होना चालू हो गई. तो marketing जो external होना चालू हो गई है, अब बात आ गई है इस पीरियड में डिजिटल वर्ल्ड में कि there is a new set of the customer, और इन कस्टमर के साथ का बिहेवियर जो है वो एक बदल चुका है. And with so much of the digital thing happening up, with so much of the social thing happening up right now, so ये कस्टमर ने अपने बाइंग बिहेवियर को चेंज कर दिया है. सो देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक नीड ऑफ अ मॉडर्न मार्केटिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी अडॉप्टेड. तो मॉडर्न मार्केटिंग का कस्टमर क्या चाहता है? दे वांट ट्रांसपेरेंसी. सो व्हेन यू गो ऑन इंटरनेट, you look out for the product, you see the same product being offered by different people at different prices. Okay, यहाँ पे ब्रांड मैटर करता है. तो ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि जब आपके दुकान में या जब आपके शॉप में, जब आपके स्टोर में, जब आपके फैक्ट्री में जब इंक्वायरी आती थी, उस वक्त में देयर वाज वन टू वन ट्रांजैक्शन. बट व्हेन दिस ट्रांजैक्शंस आर गेटिंग ओपन, ट्रांसपेरेंसी इज गोइंग टू प्ले वेरी क्रिटिकल रोल. Customer today want everything immediate. Take an example of a Domino's कि मैंने ऑर्डर किया 30 मिनट के अंदर चाहिए. Take an example of an Amazon premium delivery कि मैंने आज ऑर्डर किया, मेरे को कल चाहिए. तो customer want immediate, he doesn't have a time right now, he doesn't have patience. Okay, so point is that how quick we are in terms of retaining them, connecting with them, selling to them and delivering it to them. Customer today is internet savvy. पूरे लॉकडाउन में कोई ऐसी चीजें जो हमने सबसे ज्यादा कंज्यूम की है, तो एक तो फूड किया है, बिकॉज दैट हैज गिवन अस अ लाइफ, इसकी वजह से हम लोग जिंदा है. और दूसरा है वी हैड यूज्ड लॉट्स ऑफ इंटरनेट. आज का भी जो डेटा आप लोगों तक पहुंचा है, इट इज कमिंग टू यू थ्रू अ डेटा. आप इसको कंटेंट को एक्सेस कर रहे हो थ्रू इंटरनेट. तो एप्स, डेटा, इंटरनेट इज वन ऑफ द वेरी क्रिटिकल रोल. तो व्हेन वी आर यूजिंग इट सो इफेक्टिवली as an engrossed part and an inherited part of the entire system, तो but naturally your customer is also doing the same thing. अब आपके बाइंग के साथ में लाइफस्टाइल बाइंग इंक्लूड होगी. अब हम लोग लोकल बनिया के पास में नहीं जाते हैं, अब हम लोग मॉल में जाते हैं. अब हम लोग मॉल में जाते हैं लेकिन ऑनलाइन परचेज करते हैं, बिकॉज वी वांट अ रियल टाइम प्राइसिंग, वी वांट द इफेक्टिव प्राइसिंग. तो बाइंग हो गया है. अब लोग, people are not buying a product which is not attached to lifestyle. Today I have an option of going up and eating up a vada pav, and I go to eat up at McDonald's. With McDonald's I probably get the same product, I pay premium price for that, but with that comes is a lifestyle with my bank ki I am going and eating over there. Busy lifestyle ho gaya, people are working, couples are working, so people are very busy, they don't have time to transact from one to another place. So ये लाइफस्टाइल के साथ में बिजी लाइफस्टाइल भी हो गई है, which means that they want everything at a very convenient places. दूसरी चीज है, अगर आपके प्रोडक्ट के साथ में ब्रांड एडवोकेट एसोसिएट इन, ब्रांड एडवोकेसी इज वेयर इन यू हैव लॉट्स ऑफ रिव्यूज, यू हैव लॉट्स ऑफ फैन फॉलोइंग ऑन योर सोशल मीडिया पेजेस. अगर आप एक ब्रांड नहीं हो, अगर आपके ब्रांड को कोई एंडोर्स नहीं करता है, तो पीपल प्रोबेबली डोंट connect with you. People don't rate you as a brand, and if people don't rate you as a brand, they get into a lot of negotiation modes with you. And today people want to be continuously informed because impulsive buying आ चुका है. So when I'm talking to एक काफी शायद बहुत कुछ चीजें B2C की तरफ में जा रही है, बट एज ए नेशन ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा आपकी बिजनेसेस में. अगर आप B2B में हो तो आप किस तरीके से अपने कस्टमर को एंगेज करके रखते हो. सो टुडे कस्टमर नीड टू बी कंटिन्यूअसली इन्फॉर्म, because in this digital clutter world people tend to forget information very faster. अगर आज आपको ये SMS नहीं आया होता 10 मिनट पहले, तो शायद आप भी भूल गए होते कि आपको क्या चीज का कौन सा सेशन कितनी बजे कहां पे अटेंड करना है. सो पीपल नीड टू बी कंटिन्यूअसली इन्फॉर्म्ड. और जब हम बात करते हैं कंटिन्यूअसली इन्फॉर्म्ड की, तो इंपॉर्टेंट चीज आता है कि मैं कितने इनोवेटिवली अलग अलग कम्युनिकेशन करूं. अगर मैं एक ही कम्युनिकेशन आपको 5-5 बार करता हूं, यू विल नॉट लाइक टू बी कनेक्टेड, you will feel the same boring and it will look very generic. So आपका communication बहुत specific और बहुत action oriented और time oriented होना बहुत जरूरी है. कई लोगों ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था बिफोर वी स्टार्टेड विद द सेशन कि पोस्ट कोविड
बाइंग पैटर्न क्या होगा, कि आज जो हम लोग सिनारियो में इसका बाइंग पैटर्न क्या होने वाला है। सोशल डिस्टेंसिंग इज नाउ गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल। आज गवर्नमेंट हमको बोलती है सुबह 7-10 बजे से 7 बजे तक आप बाहर जा सकते हैं, बट ये लाइफस्टाइल हमेशा रहेगी। आपको हमेशा मास्क पहन के चलना होगा। पीपल विल नॉट लाइक टू गो टू प्लेसेस जहां पे भीड़ भड़का होगी। पीपल वुड नॉट लाइक टू गो टू अ प्लेसेस जहां पे वो बाइंग डिजिटली कर पाओगे। तो अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जहां पे फिजिकल आप सेल करते हो या फिजिकली आप एंगेज करते हो, लेकिन वही प्रोडक्ट अगर डिजिटली अवेलेबल है, तो पीपल विल टेंड टू अवॉइड, बिकॉज हर आदमी लॉजिस्टिकली एफिशिएंट होता जाएगा, हर आदमी अपने प्रोडक्ट को इन्फॉर्म करता चला जाएगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग इज गोइंग टू बी न्यू नॉर्मल, which means that no meeting and get togethers are going to happen. होटल लोग नहीं जाएंगे, ट्रैवल लोग अवॉइड करेंगे, क्राउडी प्लेसेस में लोग नहीं जाएंगे। आपके सेमिनार्स, वर्कशॉप या एग्जीबिशन जो होती थी फिजिकल फॉर्मेट में, वो लोग वहां पे नहीं आना चाहेंगे। बिजनेस डिसीजंस आर ऑल गोइंग टू हैपन थ्रू अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो व्हेन आई टॉक अबाउट डिसीजन, मतलब ये होता है कि आप प्रोडक्ट का पोजिशनिंग, प्रोडक्ट का सेलिंग, प्रोडक्ट का कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट के लॉन्चेस, ये सारी चीजों को आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू लेके जाना पड़ेगा। कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेसेस टुडे इज टू कट द कॉस्ट। क्योंकि अब आप जो प्रोडक्ट को पहले 100 रुपए में बेचते थे, अब आप शायद 100 रुपए में नहीं बेच पाओगे, क्योंकि मार्केट में 100 रुपए का अफोर्डेबिलिटी लोगों के पास में नहीं होगा। तो पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, industries, businesses will be under a tremendous pressure to cut the cost. अब कॉस्ट कट करना है तो आपको दो ही एरिया होगी, एक मार्केटिंग कॉस्ट और दूसरा ऑपरेशन कॉस्ट। कि आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को आप कैसे कट करोगे और उसको डिलीवरी कॉस्ट को आप कैसे कट करोगे। क्योंकि ये सेशन पूरा मार्केटिंग 4.0 पे है, तो हम बात करेंगे कि मार्केटिंग 4.0 को यूज करके हम अपनी मार्केटिंग कॉस्ट को कैसे कम करें। दूसरी तरफ में इंडस्ट्री 4.0 भी चल रही है, जहां पे आप ह्यूमन को रिप्लेस करके मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इंप्लीमेंट करके भी अपना ऑपरेशनल कॉस्ट कैसे कम कर पाए और मास प्रोडक्शन में कैसे जा पाए। चाइना के साथ अगर हमको कॉम्पीट करना होगा तो हमको अपना ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करना होगा। हम लोगों को अपना होराइजन एक्सपांड करना होगा। मतलब अब जो मैं फिजिकल दायरे में रह के काम करता था, मेरे को डिजिटल दायरे में रह के काम करना होगा, और मेरे को ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट करनी पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा फुटफॉल करने पड़ेंगे। फुटफॉल चाहे वो आपके स्टोर पे हो, चाहे वो आपकी वेबसाइट पे हो, चाहे आपके सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो आपके ईमेल पढ़ने वाले लोगों पे हो, चाहे आपके व्हाट्सएप सब्सक्रिप्शन लिस्ट पे हो, चाहे आपके एसएमएस के सब्सक्रिप्शन लिस्ट पे हो। तो आपको आपका दायरा एक्सपांड करना होगा। पहले जो शायद आप 10 लीड पे काम कर पाते थे, शायद वो आपको 5 गुना बढ़ा के 50 लीड करनी पड़ेगी या 100 लीड करनी पड़ेगी। क्योंकि आपका जब कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो जाएगा या आपका जब मार्जिन ऑप्टिमाइज हो जाएगा, तो आपको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, तो आपको आपका एक्सपांड करना पड़ेगा हॉराइजन को। अब बात आती है कि किस तरीके से करोगे। सो योर डेटा इज नाउ गोइंग टू बी अ किंग, और वो जो टेक्नोलॉजी आप यूज करोगे जिसमें आप अपने डेटा को डालोगे, वो आपका किंगडम होगा। कि आप अपना दायरे को कैसे यूज करते हो। योर किंग इज ओनली एज सेफ एज इज द वॉल ऑफ द किंगडम। ओके, तो आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी मार्केटिंग के लिए। चाहे आपका विजिटिंग कार्ड है उसको डिजिटल कार्ड पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपके मोबाइल में, आपके सेल्स टीम के मोबाइल में जितने बिजनेस कार्ड है उनको आपको डिजिटली सेव करना पड़ेगा, उसको लेबल करना पड़ेगा। आप जो ईमेल कर रहे हो लोगों को, वो ईमेल का डेटाबेस को आपको कोई टेक्नोलॉजी में यूज करनी पड़ेगी। हम बात करेंगे किस तरीके की टेक्नोलॉजी पे यूज करना है। आपके व्हाट्सएप कम्युनिकेशन को यूज करने के लिए व्हाट्सएप मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ेंगे। आपको एसएमएस डिलीवरी करने के लिए एसएमएस सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ेंगे। ईमेल के डेटा को डिलीवरी करने के लिए ईमेल यूज करना पड़ेगा। बट यू कैन नॉट बी जनरल। आप अपने एम्प्लॉयज को, अपने कस्टमर्स को, अपने वेंडर्स को, अपने पोटेंशियल कस्टमर को एक तरीके का कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक डेटा को सेग्रीगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो यू विल हैव टू प्रोटेक्ट योर डेटा, और जो आपको ग्रोथ करनी होगी वो आपको आपके डेटा पे ग्रो करना होगा। कई लोग 5 साल से बिजनेस में है, 1 साल से बिजनेस में 10, तो ये पूरे सालों में जो हम लोगों ने बिजनेस किया हुआ, इसमें हमने क्या किया, हमने डेटा जनरेट किया है। ओके, अब वो टाइम आ गया है कि ये डेटा को टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया जाए, सो दैट हम अपनी मार्केटिंग कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर पाए।
अब पूरी इकोनॉमी जो चलेगी वॉल्यूम बेस्ड इकोनॉमी पे चलेगी, वैल्यू बेस्ड इकोनॉमी पे चलेगी, कि ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा और उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। अब लोग आपको प्रीमियम पोजीशनिंग के लिए प्रीमियम पैसा नहीं देने वाले हैं, शायद लोगों को आपका वही प्रोडक्ट को डिस्काउंटेड प्राइस पे। अब आप एग्जांपल देना, जिस दिन जो मॉल ओपन हो जाएगा, ह्यूज डिस्काउंटिंग चालू हो जाएगी, तो स्टैंड अलोन जो स्टोर्स है दे विल बी अंडर वेरी ट्रेमेंडस प्रेशर, क्योंकि मॉल they will start delivering the product to me at house, because मॉल में लोग जाना प्रेफर नहीं करेंगे। सो लेट्स लुक अप एट इट कि अब हम ये वॉल्यूम बेस्ड इकोनॉमी को वैल्यू बेस्ड इकोनॉमी में कैसे कन्वर्ट कर पाए। मार्केटिंग ऑटोमेशन करना होगा और इनोवेटिवली करना होगा, कि मैं अपने मार्केटिंग कम्युनिकेशन को, मैं अपने न्यू प्रोडक्ट को, न्यू सर्विसेज को लॉन्च जब करता हूं या करने वाला हूं, उसमें मैं इनोवेटिव कैसे हूं, प्रोडक्शन इनोवेशन कैसे दिखाऊं, मार्केटिंग इनोवेशन में किस तरीके से दिखाऊं। अब कई सारे लोगों का ये चैलेंज रहता है कि आई डोंट नो हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी, बट पॉइंट इज दैट इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी, आई थिंक यू विल बिकम इररिलेवेंट। ओके, पहले कहा जाता था जिस आदमी को पढ़ना लिखना नहीं आता, इफ यू कुडंट रीड एंड राइट यू आर कॉल्ड इलिटरेट। बट टुडे in today's economy, if you are not able to use a technology, you will become irrelevant, you will become illiterate, you will become obsolete. ओके, तो टेक्नोलॉजी को यूज करना होगा। अब दो ऑप्शन, या तो आप खुद सीखो, या तो जिसको टेक्नोलॉजी है उसको लेके आ जाओ। जब आपने अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी तो आप खुद चलाते थे, लेकिन जैसा आपका बिजनेस बढ़ता गया, आपका टाइम कॉस्टली होता चला गया, आपने ड्राइवर को हायर किया। नाउ योर ड्राइवर कैन ड्राइव अ बेटर कार देन व्हाट यू कैन। तो सिमिलरली यही होगा कि अब आपको एक टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट करना होगा, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट को लाना होगा, नए एमबीएस, नए जनरेशन को उनको लेना पड़ेगा जो आपके मार्केटिंग ऑटोमेशन में टेक्नोलॉजी को यूज कर पाए, जो आपके ईमेल ऑटोमेट कर पाए, एसएमएस ऑटोमेट यूज कर पाए, ओके, और सीआरएम को इंप्लीमेंट कर पाए, या आपके डेटाबेस को कनेक्टिविटी कर पाए। तो टेक्नोलॉजी को आपको यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगा। मोर टेम्पटिंग ऑफर्स टू एंगेज कर, जब आप टेक्नोलॉजी को यूज कर लोगे, आपके पास में डेटा होगा, तो बात यह आएगी कि आप कस्टमर को एंगेज कैसे करोगे। सो यू विल हैव टू मेक द फुल स्ट्रेटेजी कि मैं कस्टमर को अपने किस तरीके से एंगेज करूं, ताकि कस्टमर को यह नहीं लगे कि आप हर बार आते हो सिर्फ बेचने की बात करते हो, हर बार आते हो सिर्फ ऑफर की बात करते हो, हर बार आते हो सिर्फ पेमेंट की बात करते हो, हर बार आते हो सिर्फ सर ये खरीदो। आपको आपके कस्टमर को बहुत एंगेज करना पड़ेगा, वैल्यू बेस्ड इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उनको नए नए तरीके से नया कंटेंट देना पड़ेगा, शायद आपको केस स्टडीज बनानी पड़ेगी, शायद आपको आपके कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स बनाने पड़ेंगे वीडियो पे, शायद आपको टॉक शोज करने पड़ेंगे कि आपका प्रोडक्ट यूज किया एक कस्टमर ने, वो जब यूज किया तो किस तरीके से बेनिफिटेड हुआ, जब वो यूज नहीं करता था तो उसके क्या चैलेंजेस थे, जब उसने यूज किया तो उसके क्या चैलेंजेस है, जब वो यूज कर चुका है तो उसके बेनिफिट्स कैसे। बिकॉज कस्टमर्स बिलीव्स इन कस्टमर्स। जब एक मेरे प्रोडक्ट के बारे में मेरा कस्टमर बात करता है तो दैट्स कॉल्ड ब्रांडिंग, दैट्स कॉल्ड मार्केटिंग। लेकिन जब मैं बात करता हूं मेरे प्रोडक्ट के बारे में, इट लुक्स सेम। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पीपल डोंट वांट टू बी सोल्ड, पीपल वांट टू बाय। और जब आपका कस्टमर आपके कस्टमर के रेफरल के थ्रू आता है तो उसका सेल्स साइकिल कम होता है। तो नॉर्मल केस में जब आप लीड जनरेट करते हो और एक कस्टमर को लाते हो तो उसका अगर लीड साइकिल मान लो 2 महीना है, लेकिन वही कस्टमर अगर आपके कस्टमर के रेफरल के थ्रू आया है, वो ऑलरेडी नर्चर होके आया है, वो ऑलरेडी इन्फॉर्म होके आ चुका है, तो उसका शायद लीड साइकिल आपका 1 महीना होगा, डिपेंडिंग फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। दूसरा चीज है, वो कस्टमर आपको प्रीमियम प्राइसिंग भी देगा, बिकॉज रेप्यूटेशन आपकी ऑलरेडी किसी ने एस्टैब्लिश कर चुकी होगी। कंटिन्यूअसली आपको आपका विजिबिलिटी और कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा। नजर हटी दुर्घटना घटी। अगर आपकी विजिबिलिटी कहीं पे भी हटी, आपका कम्युनिकेशन कहीं पे भी हटा, नजर हटी दुर्घटना घटी, तो किसी और की विजिबिलिटी आ जाएगी, किसी और का कम्युनिकेशन चला जाएगा। अब इस दायरे में अगर आपसे वो डिसएंगेज हो गया, किसी और से ले लिया, तो ही इज गॉन एंड ऑलरेडी टेस्टेड समवन। अब उसका चांसेस आपके पास आने का कम हो जाता है, बिकॉज उस आदमी ने सर्विस खराब देनी चाहिए, प्रोडक्ट घटिया डिलीवरी करनी चाहिए। बट इन जनरल में इफ यू लुक अप एट इट टुडे, हर किसी के पास में ऑपरेशनल एक्सीलेंस आ चुका है। तो इट्स वेरी रेयर चांसेस कि मेरा कस्टमर एक बार चला गया तो वापस से मेरे पास आएगा। तो प्लीज सी टू इट कि आप अपने कस्टमर को रिटेन करके रखो। कस्टमर ऑनबोर्डिंग स्ट्रेटेजी पे काम करना होगा।
बिकॉज वही कस्टमर अब आपसे वही चीज उसी तरीके से नहीं लेगा, विच मीन दैट द सेम कस्टमर वोंट बी दैट रिलेवेंट जो पहले हुआ करता था, क्योंकि कस्टमर को भी तो अपनी प्राइस कट करनी है, कस्टमर को भी अपना प्रोडक्ट इनोवेट करना है, कस्टमर को भी अपनी चीजों को ऑप्टिमाइज करनी है, तो वो भी एक अलग अलग वेंडर्स को ढूंढ रहा है, वो भी एक अलग अलग शॉप्स को ढूंढ रहा है, वो भी एक अलग अलग प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहा है जहां पे वो कस्टमर हमको उसको वही चीज मोर इफेक्टिव कॉस्ट में कैसे मिले। Am I making sense right now? So just type in yes or no so that I understand my content is reaching out to you in a right format the way it is expected to be. आप क्वेश्चन आंसर में आप क्वेश्चन आंसर डाल सकते हो। Okay. Then I come down to another topic over here. So अब बात करते हैं कि हम खुद लोगों ने अपने आप को टेक्नोलॉजी किस तरीके से यूज किया है। सो हाउ हैड बीन आवर ओन टेक्नोलॉजी एडाप्टेशन। जब मैं टेक्नोलॉजी यूज करता हूं कोई चीजों को यूज करके, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि कोई और आदमी वो टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहा होगा। सर्टनली कोई और भी आदमी उस वक्त में उसके टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। ओके, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज कर रहे हैं। तो हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। अब अगर हमको कोई चीज इंफॉर्मेशन सर्च करनी होती है तो वी यूज गूगल, सॉरी, तो वी यूज गूगल टू सर्च। सो बट नेचुरली मेरा कस्टमर भी गूगल को यूज करता है। तो अब अगर मैं गूगल पे नहीं हूं तो कोई और है। तो पॉइंट इज दैट इफ यू आर नॉट सीन ऑन गूगल देन इट्स अ चैलेंज। सो वी यूज गूगल फॉर सर्चेस, we use Google Map for finding out the location or to reach out to different places. We use Ola and Uber to transit. We use for YouTube for entertainment and for the learning. We use Amazon, Flipkart for buying experiences. We use Paytm, InstaMojo, PayU for payment gateway. We use Facebook, Instagram for social networking. We use LinkedIn for professional connect. And we use WhatsApp for both professional and personal connect. अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, तो हम यूज करते हैं गूगल पे कोई चीज को ढूंढने के लिए, तो बट नेचुरली मेरा कस्टमर भी गूगल को यूज कर रहा है मेरे को ढूंढने के लिए। अब अगर मैं वहां पे नहीं दिखता हूं तो मेरा कस्टमर दिखता है। जब मेरा कस्टमर दिखता है तो बट नेचुरली ही इज मोर विजिबल। मैंने आपको पहले ही बोला था विजिबिलिटी इज गोइंग टू बी द की। तो सी टू इट कि आप गूगल में इस वक्त में किस तरीके से दिख रहे हो। सो इफ यू आर नॉट सर्च ऑन गूगल, so which means your business is shut on digital. We use map for location कि आज हमको एक जगह से दूसरी जगह पे जब जाना होता है तो गूगल के साथ में अगर आपको पता होगा तो गूगल लोकल लिस्टिंग आती है जहां पे आप बिजनेसेस नियर मी बोलते हो, जहां पे आप बोलते हो कि स्टोर नियर मी, डेंटिस्ट नियर मी, और ऑर्थोपेडिक क्लिनिक नियर मी, और ब्यूटी पार्लर नियर मी, और थिएटर नियर मी। तो आपको देखना है कि आपके बिजनेसेस को जब आप अपने बिजनेस कीवर्ड के साथ में गूगल पे डालते हो तो आपको गूगल लोकेशन या गूगल लोकल लिस्टिंग में आपकी लिस्टिंग आती है क्या। अगर लिस्टिंग नहीं आती तो एक वो सीरियस चैलेंज है। दूसरा, जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को, तो आज मेरे को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो बट नेचुरल है एक डिवाइस इज रिक्वायर्ड, कार्ड लगती है मेरे को, बट टेक्नोलॉजी एनेबल कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी मेरे हाथ में है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के बीच में, और वही टेक्नोलॉजी डिलीवरी पार्टनर ओला और उबर की गाड़ियों के पास में भी है। तो जब मैं अपनी लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाता हूं तो टेक्नोलॉजी क्या करती है, मेरी लोकेशन से वहां जाने वाला जो भी नजदीक का ऑटोमोबाइल या कार या व्हीकल अवेलेबल है उसको कनेक्ट करवाता है। गाड़ी मेरे पास आती है, मैं बैठता हूं, मैं चला जाता हूं, ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। तो जब हम ये यूज करते हैं तो हमको देखना है कि मेरा कस्टमर भी यही कर रहा होगा। YouTube फॉर एंटरटेनमेंट एंड लर्निंग। YouTube has been one of the most used platform during this entire lockdown period because आज के डेट में लोगों को पढ़ना पसंद नहीं है, सुनना पसंद नहीं है, लोगों को देखना पसंद है जिसमें विजुअल इफेक्ट, वॉइस इफेक्ट और एक रियल कनेक्ट मिलता है। तो यू शुड यूज YouTube वेरी इफेक्टिवली टू एंगेज विथ योर कस्टमर। आप YouTube पे अपना कॉर्पोरेट फिल्म बना सकते हो, आप YouTube पे अपने कस्टमर के वीडियो टेस्टिमोनियल डाल सकते हो, आप YouTube में अपने प्रोडक्ट के डेमो वीडियो डाल सकते हो, YouTube में आप कस्टमर के साथ इंटरव्यूज डाल सकते हो, या YouTube में आप अपनी केस स्टडीज को डाल सकते हो। तो YouTube, क्योंकि बैंडविड्थ हर किसी के पास में एमबीज में पहुंच चुकी है, बैंडविड्थ इज नो मोर अ लिमिटेशन। स्मार्टफोन
मेरे कंटेंट को बहुत सीमलेसली डिलीवर कर पा रहा है। तो अब अगर मेरे पास में यूट्यूब टाइप का प्लेटफॉर्म है और आज भी मैं वो चीज को यूज नहीं करता हूं, तो इसका मतलब है कि मेरे पास गाड़ी है लेकिन मैं पैदल जा रहा हूँ। व्हाई? बिकॉज जब आपको बिजनेस को आपके कई कस्टमर के पास पहुंचना है तो यू वांट टू रीच फास्टर, तो यू गेट इनटू कार। पैदल जाओगे तो 2 घंटे लगेंगे, कार में जाओगे तो शायद आधी घंटा लगेगा। तो इट इंप्रूव्स योर एफिशिएंसी। तो प्लीज गेट ऑन यूट्यूब। क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो हम लोग यूट्यूब कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का एक सेशन होगा, उसमें हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके के यूट्यूब के वीडियो बनाए जाए। आपके प्रोडक्ट अगर ऐसे जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे बिकते हैं, प्लीज गो गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, बिकॉज दे आर द पीपल जहां पे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल आर गोइंग एवरी डे, एंड वो आपका डिजिटल मॉल है। क्योंकि अगर बिलियन लोग वहां पे जा रहे हैं और वहां से परचेजेस कर रहे हैं, तो और अगर आप वहां पे नहीं हो तो विच मीन्स यू आर लूजिंग आउट ऑन अ बिगर अपॉर्चुनिटी। ओके, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे या स्नैपडील पे या जो भी पेटीएम मॉल पे अगर आप नहीं बेच रहे हो, तो मतलब यह है कि जो बिजी जगह है वहां पे आपकी दुकान न लगाते हुए आप कहीं तो भी वीरान जगह पे खड़े हो। तो प्लीज इंश्योर कि एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी कि आपके बिजनेस को डिजिटल, फिजिकल से डिजिटल पे कैसे लेके जाए और माल कैसे बेचना चालू करे। दूसरा चीज, अभी तक के आपने आपका ट्रांजैक्शन दुकान में जाते थे, होटल में जाते थे, रेस्टोरेंट में जाते थे, मॉल में जाते थे, पेमेंट को स्वैप करते थे। अब वो स्वैपिंग आपका डिजिटल पे चला गया। तो अब अगर आपकी वेबसाइट, आपका सोशल मीडिया, अगर आप इसको पेमेंट गेटवे के साथ इंटीग्रेट नहीं कर रहे हो तो चैलेंज है। क्योंकि फिजिकली तो आप वो तब स्वाइप करेगा या स्वैप करेगा जब आप तक पहुंचेगा, लेकिन वो अगर आप तक पहुंचेगा ही नहीं तो पेमेंट कैसे पहुंचाएगा? ना फिजिकली पहुंचा पाएगा, ना डिजिटली स्वैप कर पाएगा। तो कीपिंग दिस इन व्यू, आपको आपके बिजनेसेस को पेटीएम, इंस्टामोजो, पेयू, रेजर पे या ऐसे पेमेंट गेटवे के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दे चार्ज 2%, बट दैट्स फेयरली ओके, बिकॉज आप पूरा एक्सपीरियंस डिजिटल पे दे रहे हो। आप रेंटल पे नहीं कर रहे हो, आप एयर कंडीशनिंग पे नहीं कर रहे हो, आप सेल्समैन यूज नहीं कर रहे हो, तो 2% अगर वो ले भी लेता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज आप उसके लिए फिजिकल इन्वेंट्री भी जमा नहीं कर रहे हो। तो लुकिंग एट इट, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आपके बिजनेसेस के साथ में कन्वीनियंस ऑफ बाइंग, convenience of selling, and convenience of financial transactions will also be required to be enabled from that. Okay, second thing is you will have to be active on Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, and whatever platform suits you the most, because people would like to buy from there. अगर आपने कल की एक न्यूज पढ़ी होगी ना, फेसबुक, ओके, मार्क जुकरबर्ग ने कल ही एक न्यूज अनाउंस की है, फेसबुक इज कमिंग विथ इट्स ओन ई कॉमर्स, जहां पे दे विल, अभी तक के आप सोशल मीडिया पे जाते थे, अपने एडवर्टाइजमेंट्स डालते थे, तो विच वाज फाइन फॉर पीपल टू गेट एंगेज, बट पीपल वांट समथिंग बियॉन्ड दैट। सो फेसबुक is already coming up with an online e-commerce now, which will compete Amazon and Flipkart in a very big way, because most of the people are active on Facebook most of the time and on Instagram. Okay, अब अगर यहाँ पे आके if they are able to see your product, if they want to make a buying decision, and if at that point of time it's also enabled with people can make a payment, it's going to turn around everything. So real estate business is going to be a big challenge, because अब आपको प्रीमियम मॉल की जगह पे सिर्फ आपको शायद वेयर हाउसिंग लगेगा। प्रीमियम मॉल अगर आपको शायद 100 रुपए स्क्वायर फीट पे मिलता होगा, तो आपको वेयर हाउस शायद आपको 5, 10, 15, 20 रुपए में मिलता होगा। तो आपको आपकी ऑनबोर्डिंग जर्नी ऑन सोशल मीडिया इज गोइंग टू प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कई लोग पूछते हैं कि इट कॉस्ट अ लॉट, इट डजंट कॉस्ट अ लॉट, एंड आई विल पुट इट अप इन अ वे। अगर आप चालू कर रहे हैं तो यू शुड डू इट विद DIY, डू इट योरसेल्फ। आप खुद चालू करो सोशल मीडिया हैंडल करना, आप खुद चालू करो वो इंस्टाग्राम के पोस्ट बनाना, इज बेटर टू बी एवरेज देन नॉट। प्रोफेशनल होना चाहिए। तो एक सेशन हम लोग इस चीज के ऊपर में भी लेंगे कि हाउ यू कैन मेक योर ओन क्रिएटिव्स विदाउट लर्निंग कोरेलड्रॉ एंड फोटोशॉप, वो भी एक सेशन होगा। डेडिकेटेड सेशंस हम लोग अलग अलग, because as I said, I don't want it to be a motivational program. I want this entire session,
आई वांट दिस एंटायर सेशन टू बी वेरी प्रैक्टिकल ड्रिवन सेशन, कि आज आपने सीखा, अभी आपने यूज करना चालू कर दिया। तो आज का ये सेशन होने के बाद में अगले 10 दिन तक के देयर विल बी 1 आवर 2 आवर ऑफ अ प्रैक्टिकल ड्रिवन सेशन। मैंने बात तो कर लिया कि ये सब चीज करनी है, बट अगर आपको मैं ये नहीं सिखा पाता हूं कि कैसे यूज करना है, इट विल बी अ बिग चैलेंज। तो आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऑनबोर्डिंग, इफ यू नो, व्हाट्सएप के ऊपर में भी एक नया टैब आ चुका है। इफ यू आर यूजिंग अ बिजनेस व्हाट्सएप, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कैटलॉग। वहां पर भी आप जाके अपने कैटलॉग डाल सकते हो, उसके प्राइसिंग डाल सकते हो। पीपल कैन बाय फ्रॉम व्हाट्सएप एंड ऑल्सो पे यू फ्रॉम व्हाट्सएप। अब two most used thing on a digital platform is WhatsApp and social media. अब अगर WhatsApp आपको चैटिंग के साथ में प्रोफेशनल बिजनेस एस्टैब्लिश करने का अपॉर्चुनिटी देता है, तो पीपल वुड लाइक टू बाय फ्रॉम देयर, बिकॉज आपके WhatsApp में वही लोग हैं जो आपको जानते हैं। ओके अब जब लोग ये आपको जानते हैं तो दे आर मोर कंफर्टेबल बाइंग इट फ्रॉम यू। Okay, today people are more comfortable for WhatsApp for both personal and professional connect. पहले WhatsApp लोग 1-to-1 कनेक्ट करने के लिए करते थे, सोशल होता था, फ्रेंड्स के साथ होता था, फैमिली के साथ होता था। लेकिन आज आप लोगों ने भी अपने कस्टमर के WhatsApp ग्रुप बना लिए। People are very comfortable to do the transaction, discussion, interaction, updates with you on WhatsApp. So people had accepted WhatsApp on both professional and personal fronts. So way forward for businesses. सोशल मीडिया आपको यूज करना पड़ेगा टू आउटरीच योर कम्युनिकेशन। सो इफ यू आर नॉट ऑन अ सोशल मीडिया, मतलब ये है कि आप स्मार्टफोन यूज करते हो लेकिन डेटा नहीं है। स्मार्टफोन इज अ डम फोन अगर उसको इंटरनेट प्रोवाइड नहीं होता है तो, या डेटा है आपके पास, स्मार्टफोन नहीं है तो मतलब वो भी चीज का कोई फायदा नहीं होता है। सो यू विल हैव टू गेट एक्टिव ऑन अ सोशल मीडिया, यू डोंट हैव ऑप्शन। सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल मीडिया कोलैबोरेट्स, बिकॉज लोगों का आदत होगा सोशल बाइंग, सोशल सेलिंग, सोशल कम्युनिकेशन, सोशल लिसनिंग एंड सोशल एंगेजमेंट एंड सोशल रेपुटेशन। और बेस्ट पार्ट इन सारी चीजों की है, दे डोंट चार्ज योर सिंगल पेनी टू यूज देयर इन्वेंट्री, टू यूज देयर रियल एस्टेट। अगर आज आपको दुकान खोलनी है, ऑफिस खोलना है, तो रियल एस्टेट का पैसा लगता है, बट इस रियल एस्टेट पे, इस डिजिटल स्पेस के ऊपर में यूज करने के लिए यू आर नॉट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी। Yes, as your business grows, you can always upgrade it, but right now it's not required. दूसरा चीज है, ensure that you are available on Google and Google is able to find you, because 90% of the people when they want to find anything, they go on a Google. तो आपका कस्टमर भी वही करता है। तो आप जिस भी बिजनेस में, उस बिजनेस का कीवर्ड गूगल में जाके डालिए। अगर आप मान लो कोई बैटरी मैन्युफैक्चर हो, तो टाइप बैटरी मैन्युफैक्चर। अगर आप लोकल हो तो टाइप बैटरी मैन्युफैक्चरर्स इन पुणे, बैटरी डीलर्स इन पुणे, बैटरी डिस्ट्रीब्यूटर इन पुणे। अगर आप रीजनल हो तो आप डालिए बैटरी मैन्युफैक्चरर्स इन महाराष्ट्र, केबल मैन्युफैक्चरिंग इन महाराष्ट्र, आर्किटेक्ट इन महाराष्ट्र। तो आपके जो कीवर्ड के साथ में कीवर्ड अटैच करो। लोकल हो तो लोकल सिटी डालो, रीजनल हो तो जिस स्टेट में हो वो डालो, नेशनल हो तो इंडिया डालो, ग्लोबल हो तो सिर्फ कीवर्ड डालो। सो दैट्स हाउ द स्ट्रेटेजी शुड बी देयर। प्लीज 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 यूज लिंक्डइन टू बिल्ड योर प्रोफेशनल नेटवर्क। अगर आपका बिजनेस इज B2B के साथ में जाता है तो इफ यू आर नॉट यूजिंग लिंक्डइन, विच मीन्स दैट कि आप अपने बिजनेस चला रहे हो लेकिन दरवाजा बंद करके बैठे हो। देयर इज अ लिंक्डइन स्ट्रेटेजी। पीपल ऑन अ लिंक्डइन कनेक्ट विथ यू डिफरेंटली देन पीपल ऑन अ फेसबुक। फेसबुक पे आपके साथ वो कनेक्ट करना चाहता है या आप उनके साथ कनेक्ट करना चाहते हो जिनको आप जानते हो, जो आपका सोशल नेटवर्क है, जो आपका फैमिली नेटवर्क है, जो आपका फ्रेंड्स है। बट ऑन अ लिंक्डइन पीपल वुड लाइक टू कनेक्ट विथ यू अगर आपका प्रोफेशनल नेटवर्क उसके साथ मैच करता है। तो अगर आप सीईओ हो तो सीईओ आपके साथ कनेक्ट करना चाहेगा। अगर आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो तो मार्केटिंग मैनेजर तक के लेवल के लोग आपसे कनेक्ट। सो यू विल हैव टू डिफाइन योर ऑडियंसेस, वो इनके साथ एंगेज होना चालू करना पड़ेगा आपको। एक सेशन हम लोग लेंगे विच इज गोइंग टू बी 2 आवर सेशन ऑन लिंक्डइन मार्केटिंग, कि हाउ डू यू गो एंड बिल्ड योर लिंक्डइन नेटवर्क। तो इसका भी एक स्ट्रेटेजी। वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक विच पीपल डू ऑन लिंक्डइन इज वो कनेक्ट करते हो इमीडिएटली बेचना चालू। बिगेस्ट 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 मिस्टेक ऑन अ लिंक्डइन। लिंक्डइन इज नॉट अ हंटिंग प्लेटफॉर्म कि आपको भूख लगी आपने खा लिया। लिंक्डइन इज अ
प्लांटिंग प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन इज अ नर्चरिंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप एक सीड डालते हो, इसको थोड़ा ग्रो करते हो, उसके बाद में उसके फल खाते हो। तो प्लीज डोंट सेल डायरेक्टली ऑन लिंक्डइन। अगर आपने सेल किया तो यू विल बी बार्ड, लोग आपको अलग तरीके से देखेंगे। प्लीज सी टू इट, यूट्यूब के ऊपर में, टू लेट पीपल हियर एंड सी यू। सेकंड बिगेस्ट सर्च इंजन टुडे इज यूट्यूब। तो गूगल के बाद में अगर आदमी कोई भी चीज को सर्च करना चाहता है तो यूट्यूब पे जाता है। ओके अगर आप यूट्यूब पे नहीं जाते हो तो तकलीफ है। प्लीज बिल्ड योर स्ट्रेटेजी टू बी ऑन अ कंटेंट डिलीवरी, वीडियो कंटेंट डिलीवरी प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब। बेस्ट पार्ट, यूट्यूब डोंट चार्ज एनीथिंग। ओके तो अभी ये जो वेबिनार हो रहा है, probably where I am addressing 300 people right now, tomorrow 300 people again needs to do, it's going live on my YouTube, is going live on my Facebook as well, so people can still see to the same communication again and again. Google local listing is very important for B2C businesses. आपको देखना है, आपने Google local listing पे prominent होना चाहिए, और ये local listing के साथ में people should be able to search you. Separate session on local listing हम लेंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे। See to it that your website is decent. आपका वेबसाइट इंटरनेट पे अच्छे तरीके से दिखे, कम टाइम में दिखे, मोबाइल के ऊपर में फटे नहीं, वी कॉल इट मोबाइल कंपैटिबल वेबसाइट। आपका कंटेंट रिलेवेंट हो। आप कई सारी जगह पे मैं देखता हूं कि लोग अवर टीम डालते हैं, उसमें डमी फोटो डाल देते हैं। कई जगह पे मैं देखता हूं क्लाइंट डालते थे, क्लाइंट के नाम नहीं डालते हैं। कई जगह पे लोगों ने अपनी वेबसाइट में टेस्टिमोनियल का सेक्शन ओपन किया, पे डमी टेस्टिमोनियल डाल दिया है। कई जगह पे लोग जाते हैं, वेबसाइट का इंक्वायरी फॉर्म जब भरते हैं तो उसमें एरर आ जाता है। तो पॉइंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, आपकी वेबसाइट में हर वो कंटेंट है, लेकिन अगर उसको जाले लगे हैं, अगर आपने 2 महीने 3 महीने 6 महीने साल भर 2 साल 3 साल से अपडेट अगर नहीं किया है, बॉस पीपल विल कम टू योर वेबसाइट बट दे विल बाउंस ऑफ। वेबसाइट पे आएंगे, दे विल नॉट गेट अपडेटेड इंफॉर्मेशन, वो लोग चले जाए। कल आपने मान लो क्लाइंट एक्वायर किया, अगर आपने अपनी वेबसाइट पे नहीं डाला और वेबसाइट पे वो क्लाइंट है जो 6 महीने पहले थे, चैलेंज, बिकॉज आपने अपने कस्टमर को अपडेट नहीं किया है। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल में सही तरीके से ओपन नहीं होती है, तो आपको एक ही चीज करना है, आज आपकी वेबसाइट लेना, उसका नाम आपके मोबाइल फोन में डालना, चाहे एंड्रॉइड में आईफोन में, आप ये देखो कितने सेकंड में डाउनलोड होती है, और अलग अलग पेज नेविगेट होने में कितना इजी जाता है। उसको हम यूजर एक्सपीरियंस बोलते हैं, कि जब यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है तो किस तरीके से आपको एक्सप्लोर कर पाता है। फिर यूज सीआरएम, शुगर सीआरएम आप यूज कर सकते हो, आप सेल्सफोर्स यूज कर सकते हो, आप मेलचिम करके एक मेलिंग सॉफ्टवेयर उसको यूज कर सकते हो, आप सेंडइनब्लू मेलिंग सॉफ्टवेयर उसको यूज कर सकते हो, या आप अपना सीआरएम बना भी सकते हो, क्योंकि हर कॉन्टैक्ट आपके साथ मल्टीपल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन के साथ भी जाता है। तो आज मेरा रिलेशन किसी के साथ भी होगा तो वो शायद मेरा फ्रेंड भी है बट ऑल्सो माई कस्टमर, तो उसको मैंने 2 जगह पे टैग करना जरूरी है। हो सकता है कि मेरा कस्टमर आज है लेकिन कल, या सॉरी, आज जो मेरा कस्टमर नहीं है, ही इज माई एक्स क्लाइंट बट टुडे इज नॉट माई क्लाइंट, तो उसको एक एक्स क्लाइंट के कैटेगरी में डालो, बिकॉज यू वांट टू मेक हिम अ डिफरेंट लेवल ऑफ द कम्युनिकेशन। आपके मोबाइल फोन में आपके कॉम्पिटिटर भी होते हैं, तो उनको एक कॉम्पिटिटर के लेवल पे डालो, क्योंकि आप नहीं चाहते हो आपका सेल्स और प्रमोशन का मैटर उनको जाए। तो प्लीज स्टार्ट सेग्रीगेटिंग योर डेटा अक्रॉस, चाहे उसका कॉन्टैक्ट हो, चाहे उसका मोबाइल नंबर हो, चाहे उसका ईमेल एड्रेसेस हो। प्लीज यूज दिस थिंग टू टैग योरसेल्फ। व्हाट्सएप एंड एसएमएस मार्केटिंग को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज दिस आर एन इंस्टेंट डिलीवरी प्लेटफॉर्म। आप अगर आपके सोशल मीडिया पे आज कंटेंट डालते हो तो उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो अभी दिखेगा, कि कल दिखेगा, कि 3 दिन बाद दिखेगा। लेकिन व्हाट्सएप पे जब आप कोई मैसेज किसी को डालते हो या एसएमएस डालते हो तो इमीडिएट दिखता है, अगले 2 मिनट 5 मिनट के अंदर में, क्योंकि एवरी 5 मिनट्स एवरी 10 मिनट पर्सन चेक्स देयर मोबाइल। जब मोबाइल चेक करता है तो सबसे पहले व्हाट्सएप और एसएमएस चेक करता है। तो यू विल हैव टू यूज दिस टूल वेरी वेरी इफेक्टिवली। अब नॉर्मल व्हाट्सएप की जगह पे ट्रांजैक्शनल व्हाट्सएप, एसएमएस के साथ ट्रांजैक्शनल एसएमएस देना चालू करो। ओके, जहां पे पीपल कैन सब्सक्राइब टू योर व्हाट्सएप लिस्ट। तो वी विल डिस्कस दिस सेपरेटली जब मैं व्हाट्सएप का एक सेशन लूंगा उसके ऊपर में। प्लीज स्टार्ट एडॉप्टिंग स्काइप, जूम, गूगल हैंगआउट टू मीट एंड कोलैबोरेट। अपने ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर डालो, आपके इंटरव्यूज इसके थ्रू होने दो, आपके सेल्स मीटिंग इसके थ्रू होने दो, आपके टीम मीटिंग्स इसके थ्रू। कई लोगों को मैं बोला था कि जूम इज अनसिक्योर्ड, यस इट वाज, बट हर चीज अनसिक्योर्ड। हम फ्लाइट में जाते वो भी गिर जाती है।
किसी ने बोला था हम कार में जाते उसका भी एक्सीडेंट, बट इफ यू लुक अप एट इट, जो आज से 20 दिन पहले की न्यूज थी जूम में, और आज के बीट में जूम ने अपने आप को काफी अपग्रेड कर लिया है, बिकॉज दे नो वन थिंग that if they are not able to match up to the expectation level, लोग अगर उसकी रेपुटेशन में कहेंगे, immediately people will start banning it. तो गूगल हैंगआउट इज अगेन वन ऑफ द वेरी रेप्यूटेड थिंग, डजंट कॉस्ट यू, 250 लोगों तक गूगल हैंगआउट फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्काइप हैज आल्सो कम विद वेब वर्जन, जहां पे आप मल्टीपल लोगों को इनवाइट कर सकते हो। जूम हो गया है, सिस्को का वेबएक्स हो गया है, गो टू मीटिंग हो गया है, तो कई सारे प्लेटफॉर्म, और आने वाले दिनों में काफी प्लेटफॉर्म यूज होने चालू। पॉइंट इज दैट मेक एन कल्चर ऑफ engaging with everyone on a digital platform. हमको पहले आदत थी across the table बैठ के बात करने की, but that's not going to happen now. Okay? So evolution of a marketing हम बात करते हैं, we all know. So we all started marketing with a concept of a barter system. पहले के जमाने में एक आदमी बनाता था, वो बनाता था, मान लो सब्जी बनाता था या फ्रूट्स वेजिटेबल ग्रो करता था, और दूसरा आदमी कॉटन ग्रो करता था, मैं उसको अपनी वेजिटेबल देता था, वो मेरे को कॉटन देता था। तो उस तरीके का नीड बेस्ड बार्टर सिस्टम होता था। उसके आई विल नॉट टॉक मोर ऑन दैट। उसके बाद में बिजनेस से जो होने हो गए वो चालू हो गए B2B की, मैं बनाऊंगा और कस्टमर में से खरीद लेगा। ओके, मैं बनाऊंगा और एक बड़ा बिजनेस में से लेगा और उठा के उसको बेच देगा। तो मतलब ये हुआ कि आज मारुति कंपनी ने कार बनाई, उसका डीलरशिप ने कार की एजेंसी ली और वो जाके आगे एंड यूजर को बेचता था। तो देयर वाज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल व्हिच वाज इन्वॉल्व। बट नाउ एंटायर थिंग इज कमिंग डाउन टू B2C, ओके, जहां पे बनाता भी वही है, बेचता भी वही है। ओके, बिकॉज सोशल मीडिया आ चुका है, बिकॉज एवरीवन वांट टू कट डाउन ऑन द कॉस्टिंग राइट नाउ। अब सोशल मीडिया जब आ चुका है तो क्या हो गया है, मैन्युफैक्चरर से एंड यूजर के बीच का गैप खत्म हो गया है। प्लेटफॉर्म लाइक Amazon, प्लेटफॉर्म लाइक फ्लिपकार्ट, में 2-3 नाम ले रहा हूं बिकॉज विच आर वेरी वेरी जनरिक। ओके, तो कीपिंग दिस इन व्यू, सोशल मीडिया आ गया है, डिजिटल मार्केटिंग आ चुका है, जो आपको लीड जनरेशन करने के लिए हेल्प करते हैं, ब्रांड अवेयरनेस के लिए यूज करते हैं। आप अपने हैप्पी कस्टमर के फेसेस डाल सकते हो, प्रोडक्ट लॉन्चेस डाल सकते हो, केस स्टडीज लॉन्च कर सकते हो। तो अब इवोल्यूशन ऑफ अ मार्केटिंग इज मोर ड्रिवन बाय सोशल मीडिया। और जो कल न्यूज आई थी कि मार्क जकरबर्ग ने बोला था कि दे आर नाउ कमिंग विद देयर ओन ई-कॉमर्स, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, दो platform which are specifically being used by end user today is WhatsApp and social media पे Facebook है ऐसा। Facebook had owned WhatsApp, Google had owned YouTube, Microsoft had owned LinkedIn। तो मतलब ये 3 जो मेजर बिजनेसेस है, नाउ टेक्नोलॉजी कंपनीज हैज बिकम अ बैंकिंग कंपनी, बिकॉज वो लोग बिजनेसेस एब्जॉर्ब करने लग गए और वो लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो हमने ये कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से यूज करना चाहिए और अपने बिजनेसेस को ऑनबोर्ड करना चाहिए इन सारी चीजों के ऊपर में। तो व्हाइल सेशन इज ऑन मार्केटिंग 4.0, तो मैं पहले बात कर लेता हूं कि मार्केटिंग 4.0 इवॉल्व कैसा हुआ है। तो मार्केटिंग 1.0 में आया प्रोडक्ट सेंटरिंग, कि मैंने प्रोडक्ट बनाया और मार्केटिंग कर दिया। ओके, प्रोडक्ट बनाया, इसको अलग यूजर तक पहुंचा दिया, व्हिच वाज मार्केटिंग 4.0, क्योंकि प्रोडक्ट लगता है मार्केटिंग करने के लिए। सो दैट वाज द इवोल्यूशन ऑफ अ मार्केटिंग 1.0। ओके, सेकंड आया जहां पे कंज्यूमर ने डिमांड करना चालू किया कि मेरे को ये लगता है, और वो नीड के ऊपर में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने या ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोडक्ट को डिलीवरी करनी चालू की। ओके, सो वेयरिंग कस्टमर वाज अ किंग, जो हम लोग पहले बोलते थे कस्टमर इज अ किंग, कस्टमर इज स्टिल अ किंग। तो उस इकोनॉमी ने मार्केटिंग 2.0 को इवॉल्व किया। ओके, जहां पे कस्टमर आ रहा है। अब आ गया मार्केटिंग 3.0, जहां पे ह्यूमन सेंट्रिक, जहां पे मैंने बनाया, कंज्यूमर की नीड है और देयर वाज ह्यूमन इन्वॉल्व टू डिलीवर द प्रोडक्ट। तो मार्केटिंग 4.0 को शायद हम बात कर सकते हैं कि मैंने प्रोडक्ट बनाया और दुकान के थ्रू बेच दिया। मार्केटिंग 2.0 जहां पे मैंने न्यूज़पेपर को यूज किया, फ्लायर्स को यूज किया, होर्डिंग्स को यूज किया, डिजिटल नहीं आया था। ओके, या टेलीविजन को यूज किया था। तो दैट वाज मार्केटिंग 2.0, जहां पे मैं अपना कंटेंट को कंज्यूमर तक पहुंचा। मार्केटिंग 3.0 में मॉल्स आने लग गए, डिजिटल टेलीविजन आने लग गए, जहां पे मेरा कंटेंट डिलीवरी इसके थ्रू है। अब मार्केटिंग 4.0 में, मार्केटिंग 3.0 में शायद सोशल मीडिया को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। मार्केटिंग 4.0 में इन सारे चीजों के साथ में मेरी टेक्नोलॉजी आ गई, मेरा डिलीवरी मैकेनिज्म आ गया। ओके, मैं CRM आ गया, मेरा ईमेल मार्केटिंग के टूल्स आ गए, व्हाट्सएप मार्केटिंग के टूल आ गए, SMS मार्केटिंग के टूल आ गए,
तो ये सारी डिलीवरी मैकेनिज्म आ गई मार्केटिंग 4.0 में, जहां पे आपका डेटा कोलैबोरेट करता है आपकी टेक्नोलॉजी के साथ में और कस्टमर को बाइंग एक्सपीरियंस देता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, या फिर आपका ट्रांजैक्शन सेल करके देता है। तो दो तरीके के मार्केटिंग की हम लोग हमेशा बात करते हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड न्यू एज मार्केटिंग, क्योंकि पूरा सेशन मार्केटिंग के ऊपर में चल रहा है। तो वी विल डिस्कस कि मार्केटिंग एज में क्या होता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज अ लोकेशन ऑफ ब्रांड सेंट्रिक, कि मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग करता हूं, मेरी ये फिक्स लोकेशन और ये मेरा ब्रांड है, मेरे लोकेशन पे लोग आएंगे बिकॉज ऑफ माई ब्रांड। ओके, दे हैड टू बी लोकल एंड कॉम्पिटिटिव रेपुटेशन होनी जरूरी थी। आज अगर आप कहीं पे भी जाते हो तो आप वो जगह पे जाते हो जो लोकल है। ओके, हु इज मोर कॉम्पिटिटिव, उसकी रेपुटेशन। क्योंकि अगर मैं यहां से निकल के कोई दुकान पे जाता हूं, मैं यहां से निकाल के कोई मॉल में जाता हूं, तो मेरा माइंडसेट फिक्स है कि मेरे को ये मॉल में जाना है बिकॉज उसकी रेपुटेशन है, आई कैन रीच एंड आई नो व्हाट आई वांट इज अवेलेबल। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, जहां पे आपका जो कस्टमर होता था, तो योर रिपीट कस्टमर यूज्ड टू कंट्रीब्यूट 80% ऑफ योर रेवेन्यू। तो आज अगर ये साल में मैंने 1 करोड़ का अगर रेवेन्यू किया है या 10 करोड़ का रेवेन्यू किया है, तो माय रिपीट कस्टमर यूज्ड टू डू अ रेवेन्यू ऑफ 8 करोड़ एंड न्यू कस्टमर यूज्ड टू कंट्रीब्यूट 20% ओनली, बिकॉज मेरा रेपुटेशन था, लोग वही वो मेरे पास आते थे। लेकिन ये चीज अब चेंज होगी बिकॉज ऑफ द सोशल डिस्टेंसिंग, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। अब जैसे मैंने बताया कि एवरीथिंग इज नॉट गोइंग टू बी द नॉर्मल। ओके, ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाज पर्सनल ड्रिवन एंड पर्सोना ड्रिवन। पर्सन, पर्सोना, पर्सनालिटी ड्रिवन था, जहां पे आपकी वजह से लोग आते थे। आदमी जब आता था तो एक माइंडसेट के साथ में जाता था कि मेरे को ये जगह पे जाना है, मेरा ये बजट है और मेरे को ये चीज परचेस करनी है। तो घर से निकल के आदमी वहां तक पहुंचता था, वो प्रोडक्ट लेता था, वापस आ जाता था। उसका बायर, उसका जो बजट था वो डिफाइंड था। दूसरी चीज थी कि नीड बेस्ड थी, कि मैं ऐसे ही वॉन्डरिंग नहीं करता था कि चलो आज चला जाता हूं, दिखता जो पैसा है उसमें क्या खरीद के आता हूं। देयर वाज अ नीड, इसकी वजह से मैं स्टेप आउट करता था। और ये करने में आपको डिकेड्स ऑफ रेपुटेशन लग गए। किसी को 1 साल लगा, 2 साल लगा, 5 साल लगा, 10 लगा, 20 साल लगा, 40 लगा, 50 साल, ये बहुत टाइम लगा है आपको रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए। दूसरी चीज है, आप उसके रीच में चाहिए। एक ब्रांड, अगर मैं पुणे में हूं, कोई ब्रांड मुंबई में बैठा है, तो आई कैन नॉट गो देयर एवरी डे। ओके, तो ये नीड टू बी एक्सेसिबल होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है यहाँ पे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक्सेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती थी। दूसरी चीज होती थी रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन फ्रॉम 1 to 1 वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पूछता था उसको, यार मेरे को वहां जाना है, मैं जाऊं क्या? या कोई मेरे को बोलता था तुमको ये लेना है तो तुम वहां चले जाओ। अब यही जगह पे न्यू एज मार्केटिंग में क्या होता है, एवरीथिंग स्टार्टेड विथ लोकल, देन इट मूव ऑन टू रीजनल, then it moved on to national and then global. Take an example of any businesses. Everything started with local. Flipkart started with local, then it went regional, then it went national and global. Similarly, Ola Uber को भी हम लोग लेते हैं तो उन्होंने पहले मेट्रोज में चालू किया, फिर उन्होंने महाराष्ट्र में चालू किया, फिर अब वो ऑल इंडिया में चल गए। अब वो कोलैबोरेट कर लिए। So you Dunzo example लेते हैं। So if you know the case study of Dunzo started only with one particular objective in a metros like Bangalore. रात को लोग जब पार्टी करते थे, okay, they used to deliver drinks, liquors and cigarettes because रात में नहीं मिलती थी। तो they started with that. फिर उनको ध्यान में आया कि मैं जब रात को कर सकता हूं तो मैं दिन में भी कर सकता हूं। So what they said you please get engaged. आप अपने आप को अपने कोर पर्पस पे बिजी रखो कि आपको जो बनाना बनाओ, लेट डिलीवरी भी डन बाय मी। क्योंकि ग्लोबल डिलीवरी वाला DTDC ले लो या जो भी और बाकी डिलीवरी पार्टनर्स है, वो तो एक दिन लगाएंगे। मैं लोकल में हूं, मैं आपके ऐसे पिकअप करूंगा, घंटे भर में दे दूंगा, 2 घंटे में दे दूंगा। तो दैट इज व्हाट इज द टेक्नोलॉजी दे यूज। So what they do, they don't manufacture anything, but they developed a technology. They have a database. They made people to access their technology, and then they connected customer, seller, and the technology और transaction कर दिया न्यू एज। तो किया कुछ नहीं है, but they charge the transaction fees. न्यू एज में आपकी ब्रांडिंग और विजिबिलिटी बहुत मैटर करेगी। आई हैव बीन टॉकिंग, तो मैं कुछ चीजों को फटाफट लेता हूं। न्यू एज कस्टमर में क्या होता है, यहां पे आपका नया कस्टमर, न्यू कस्टमर contribute 80% of your revenue
and repeat and old customer contribute only 20% of your revenue. Flip हो चुका है. Traditional marketing में repeat customer was 80 and new was 20. New age में new customer is 80 and repeat customer is 20 because accessibility is more important. We can discuss on this once I open up the panel over there. New age में process and technology driven. अगर Uber चलता नहीं है तो मैं Uber को इंस्टॉल कर देता हूँ. Amazon मेरे को डिलीवर नहीं करता तो मैं उसको इंस्टॉल कर देता हूँ. फ्लिपकार्ट का इंटरफेस Amazon से अच्छा नहीं है तो मैं उसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ. ओके, अब अगर मैंने ऑर्डर करने के बाद में मेरे को एरर देता है तो मैं उसको इंस्टॉल. तो यहाँ पे प्रोसेस और टेक्नोलॉजी का मैरिज होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इंपल्सिव बाइंग हमने पहले देखा. ट्रेडिशनल मार्केटिंग में प्लांट बजट बायर होता था, नीड बेस होता था. ओके, और दिमाग में लेके अभी इंपल्सिव बाइंग होती है. मैं अमेजोन पे जाता हूँ एक चीज लेने के लिए, वो मेरे को बोलता है आप ये चीज के साथ अगर ये चीज लोगे तो आपको इतने में मिला. टेक एन एग्जांपल ऑफ मैकडोनल्ड जहाँ पे कॉम्बो ऑफर बनाते हैं. सो यू वेंट टू हैव एन बर्गर बट ही सेड बर्गर के साथ में अगर आप मेरे फ्रेंच फ्राइज भी लेते हो, मेरा कोक भी लेते हो तो आपको इतने रुपए मिलता है और इतना डिस्काउंट होता है. इमीडिएटली यू बिकेम एन इंपल्सिव बायर. आप अमेजोन पे जाते हो, आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो, आप ओला ऐप डाउनलोड करते हो जहां पे उन्होंने बोला है कि लोकल पास ले लो 200 रुपए में, आपका हर ट्रांजैक्शन 50 रुपए में होना चालू हो जाएगा. सो देयर आर लॉट्स ऑफ इंपल्सिव बाइंग कि मैं बोलता हूँ यार मेरे को इकोनॉमी मिल रही है तो आई बिकम ए इंपल्सिव बायर. मैंने सोचा कुछ और था, खरीद कुछ और लिया और वो चीज इमीडिएट बेसिस पे आ गई मेरे पास में. ऑफर वेस्ट होता है. यहाँ पे ऑफर चलती है, आपका ऑफर अच्छा है, पीपल विल बी एंगेज एंड पीपल विल लाइक टू बाय फ्रॉम यू. कन्वीनियंट ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज पीपल वांट कन्वीनियंट. आज मैंने प्रोडक्ट लिया, मेरे को प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, मैंने एक बटन दबाया रिफंड करने के लिए, अमेजोन का आदमी आया, पिकअप किया 1 घंटे में पैसा आ गया. कन्वीनियंट ऑफ कम्युनिकेशन हो गया. ओके, उबर में मैंने बटन दबाया, कैब आ गई, मेरे को बटन दबा दिया, कैब कैंसिल हो गई. सो इट्स ऑल अबाउट कन्वीनियंट. दूसरी चीज मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको कि आपको भी ओला या उबर टाइप का ऐप बनाना है, बट अगर आप अपने प्रोडक्ट को इनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन बिजनेसेस टू बिजनेसेस, तो देयर इज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑनबोर्डिंग. जब आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा तो लॉट्स ऑफ पीपल आल्सो आस्क मी क्या मैंने अपना ई कॉमर्स बनाना चाहिए कि पहले मैंने अमेजोन पे जाना चाहिए. आई ऑलवेज से वन थिंग, पहले आपने मार्केट प्लेसेस पे जाना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए आपके कस्टमर का बिहेवियर, आपके प्रोडक्ट का एब्जॉर्प्शन इन प्लेटफॉर्म के थ्रू. जब आपका रेवेन्यू बढ़ जाता है तब आप डिसीजन लो कि आपको खुद का ई कॉमर्स बनाना है कि आपको इन प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचना है. न्यू एज में कंटिन्यूअस विजिबिलिटी इज की. नजर हटी, दुर्घटना घटी, आप नहीं दिखे, लोग भूल चुके हैं. इमेजिन करो आपको एक व्हाट्सएप आया होगा कोई ग्रुप में, आपको बहुत अच्छा लगा, आप आधे घंटे बाद में भूल गए वो मैसेज क्या था. ये पता था मैसेज अच्छा था, किस ग्रुप में आया, किसने भेजा और मैसेज क्या था. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे इन्फॉर्म करना होगा. ट्रेडिशनल मार्केटिंग का शॉर्ट है, मैं इसको फटाफट रन करता हूं बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट वी वांट. ट्रेडिशनल शॉर्ट ये होता है, स्ट्रेंथ होती है पर्सनल रैपो, फिजिकल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलता है पर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में. टच मिलता है कि ओके देयर इज समवन टू सेल द प्रोडक्ट, बहुत साल की रेपुटेशन होती है और आपकी सेल्स स्किल काम आती है ट्रांजैक्शन क्लोज करने के लिए. लेकिन वीकनेस क्या आती है, जैसे हमने बोला कि नया देयर इज अ न्यू एज ऑफ द बायर. ओके, देयर इज अ मॉडर्न मार्केटिंग, यहाँ पे बाइंग माइंडसेट ऑफ द पीपल हैज शिफ्टेड. वीकनेस होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, आपको ह्यूज इन्वेंटरी रखनी पड़ती है, शोरूम में बहुत सा माल रखना पड़ता है, बिके ना बिके उसका इन्वेंटरी चलते रहता है. रिकरिंग फिक्स्ड कॉस्ट है, उतना ही बड़ा ऑफिस, उतना ही बड़ा सेटअप, उतना ही एयर कंडीशनिंग चलाना है, उतना ही मैन पावर को लेना पड़ेगा. ओके, फिजिकल टच पॉइंट, आपकी दुकान अगर 12 घंटे चलती है तो आप रेंट 24 घंटे का देते हो, आदमी को सैलरी 24 घंटा देते हो, लेकिन यूटिलाइजेशन सिर्फ 12 घंटे करते हो. आपका शटर डाउन, दुकानदारी बंद. तो फिजिकल टच पॉइंट एक वीकनेस होती है. लोकल बाउंड्री है कि एक लोकल एरिया से आदमी आपके पास में आ सकता है. अपॉर्चुनिटी क्या होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, आप इन्वेस्ट करोगे तो अभी कई सारा क्राउड रूरल से अर्बन में माइग्रेट हो रहा है. हाउएवर पोस्ट कोविड में वो भी बंद हो गया. अभी लोग अपने घर से, अपने ऑफिस से, कोई आदमी नागपुर में बैठा, कोई आदमी सातारा में बैठा, उसकी टेक्नोलॉजी उसके पास में, कंपनी बोलती है सातारा में अपने घर पे बैठो काम करो. तो शायद ये चैलेंज बहुत बड़ा है. अपॉर्चुनिटी मैंने बोला है बट दैट्स फेयरली ओके. तो अभी रूरल टू अर्बन माइग्रेशन भी कम हो जाएगा. ओके, बट हम अज्यूम करते हैं बिकॉज लॉट ऑफ पीपल स्टिल वांट टू कम बैक, तो ब्रांड के साथ एसोसिएट होना होगा. अपॉर्चुनिटी होगा कि ब्रांड कॉन्शियस आपका बढ़ रहा है क्योंकि आते जाते मेरे को आपकी दुकान दिखते रहती है, मेरे को आपका शोरूम दिखता है, मेरे को आपका मॉल दिखते रहता है.
अपॉर्चुनिटी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होती है, जब एक कस्टमर आता है तो आप उसको क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग कर सकते हो कि आप आए हो, धन्यवाद, इसके साथ ये भी ले लो, तो आपकी सेलिंग स्किल काम आती है। कीप ग्रोइंग एज डिमांड राइज, जैसे जैसे आपका डिमांड राइज होता है आप एक शोरूम, दो शोरूम, तीन शोरूम, एक लोकेशन, दो लोकेशन पे जा सकते हो। अपॉर्चुनिटी होती है फिजिकल हो रहा है, लोकेशन का एडवांटेज होता है कि आप एक बहुत रनिंग लोकेशन में, प्रीमियम लोकेशन में हो तो आपका बिजनेसेस बढ़ जाते हैं। थ्रेट क्या है ट्रेडिशनल का? हायर कॉस्ट मेक यू अनकॉम्पिटिटिव, क्योंकि जैसे मैंने बताया कस्टमर को आपका वही प्रोडक्ट चाहिए होगा, लेकिन 100 रुपए का प्रोडक्ट शायद 75 रुपए में चाहिए होगा, तो मुश्किल जाएगा। पीपल एंड कस्टमर डिपेंडेंट हो गया कि मेरे को अपनी टीम को सैलरी तो देनी होगी, कस्टमर भी मेरे से निगोशिएट करेगा तो मार्जिन में स्क्वीज हो जाएगी। लोकल मार्केट डिपेंडेंट है। लूजिंग ब्रांड लॉयल्टी कस्टमर, क्योंकि कस्टमर बोलता है यही प्रोडक्ट, अभी टेक एन एग्जांपल, विजय सेल्स में आदमी चला जाता है, प्रोडक्ट को देखता है लेकिन जाके ऑनलाइन लेता है, क्योंकि प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस तो वो फिजिकल स्टोर में जाके कर रहा है। तो मतलब ये हो गया कि विजय सेल्स एक एग्जांपल लिया, या जो भी ऐसा ले लो, या रिलायंस डिजिटल ले लो, तो दे आर बिकमिंग फ्री ऑफ कॉस्ट रिटेल आउटलेट फॉर दिस डिजिटल एप्स, या अमेजॉन या फ्लिपकार्ट के फ्री ऑफ कॉस्ट रेंटल, उनके लोग उनके लिए काम करते हैं, लेकिन दे चार्ज टू द फिजिकल डिजिटल स्टोर। सोशल डिस्टेंस एंड मार्केटिंग एंड एंगेजमेंट, सोशल डिस्टेंस में लोगों को आपके शोरूम में, लोगों को आपके दुकानों में, लोगों को आपके फैक्ट्री में, लोगों को आपके कॉन्फ्रेंस रूम में लाना थोड़ा चैलेंजिंग काम हो जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग 4.0 का एडवांटेज है, स्ट्रेंथ है, देयर इज नो ज्योग्राफी, यू कैन ओपन अप वेयर यू वांट। आपके पास में एक एनालिटिकल टूल है ये देखने के लिए कि कितने लोगों ने मेरे प्रोडक्ट को क्लिक किया, कितने लोगों ने प्रोडक्ट नहीं किया, जिसको हम लोग बाउंस रेट की बात करते हैं, अभी हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे। तो मतलब मेरे ये वेबसाइट पे 200 लोग आए लेकिन सिर्फ 10 ही लोगों ने इंक्वायरी भेजी है, तो मतलब ये 190 लोगों ने एंगेज नहीं हुए। ओके, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग आप कर पाओगे कि ऐसा कौन सी चीज है जो कमी हो रही है मेरे यहाँ पे, और कौन से ऐसे पेजेस है, कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिसपे लोग पहुंच नहीं पा रहे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडाप्टेड मीडियम टुडे। वैल्यूएशन एंड वॉल्यूम बेस्ड इकोनॉमी होगी। डिजिटल पे अगर आप जाते हो तो वैल्यूएशन क्रिएट, टेक एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट क्राई, फर्स्ट क्राई हैज बीन टेकन ओवर बाय महिंद्रा। तो अगर हम देखेंगे तो काफी सारा स्नैपडील के अंदर में टाटा ने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो काफी सारे अपने पास में ऐसे एग्जांपल जिसके अंदर में आप वैल्यूएशन क्रिएट करते हो डिजिटल एंड इट गेट्स एक्वायर्ड। वीकनेसेस क्या है डिजिटल मार्केटिंग की? ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी विल टेक टाइम, बिकॉज हर आदमी, हम लोगों ने सुना है कि अमेजोन के लोगों ने मोबाइल फोन ऑर्डर किए लेकिन उसके अंदर में ईट आ गई, या उसके अंदर में कुछ पत्थर डाल के भेज दे, तो ये क्रेडिबिलिटी आपको ध्यान रखना होगा। कंटिन्यूअस टेक्नोलॉजी इनोवेशन है कि आज की टेक्नोलॉजी आज के लिए रिलेवेंट है, शायद कल के लिए नहीं होगी। अगर आप देखते हो तो व्हाट्सएप के, ओला के, उबर के कंटिन्यूअस बेसिस पे एप्स आपके मोबाइल में आते हैं, अपडेट करो, क्योंकि अपडेट करने से एक्सपीरियंस बढ़ता है। अगर आपने अपडेट ही नहीं आया तो आपका वो एक्सपीरियंस नहीं आ पाएगा। तो कंटिन्यूअस बेसिस पे टेक्नोलॉजी को इनोवेट करते रहना पड़ेगा। इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट, आप एक वेबसाइट, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप जो भी करते हो, या आप वैल्यूएशन नहीं कर पाते हो कि फिजिकल स्टोर में तो क्या है, आपने डाला तो एसी बेच दिया, पंखे बेच दिए और फर्नीचर बेच दिया, तो वहां पे टेंजिबल है, पे इनटेंजिबल है। बट दैट्स द ब्यूटी ऑल्सो। कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज कोई ऐसा ऐप है जो आपको कंटिन्यूसली एंगेज नहीं करता है तो यू विल फॉरगेट दैट ऐप। अपॉर्चुनिटी के ऊपर में हम लोग आते हैं कि इंटरनेट पेनिट्रेशन इन इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट। सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स आर इन चाइना एंड सेकंड इज इन इंडिया, व्हिच मींस इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। थर्ड इज यूएस बाय द वे। फिजिकल टू डिजिटल जर्नी आप लोग करना चालू करेंगे बिकॉज पीपल डोंट वांट टू मूव। मल्टी चैनल कम्युनिकेशन का, ओके एक एग्जांपल इसके ऊपर लेता हूं। आज अगर आपकी वेबसाइट पे एक आदमी ने आया तो डिजिटल पे एक स्ट्रॉन्गर चीज होती है कि जब एक आदमी डिजिटल पे जाता है तो अपना फुटप्रिंट छोड़ देता है। मतलब आपकी वेबसाइट पे आया तो उसकी कुकीज, कि आपका आईपी या आपके कंप्यूटर का आईपी उसके साथ रजिस्टर हो गया। अगर आपने एक कोड होता है, अगर वो कोड को लेके सोशल मीडिया पे डाला तो अगले 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन तक की आपकी एड दिखती रहेगी। अगर आपने देखा होगा कभी कि आप एक फ्लाइट की टिकट बुक करने जाते हो, या आप अमेजोन पे जाके कुछ परचेस करने के लिए, लेकिन आप परचेस नहीं करते हो, तो आपको अगले 5 दिन तक के वही प्रोडक्ट सब जगह पे दिखता जाता है। दैट इज मार्केटिंग 4.0, जहां पे टेक्नोलॉजी, डेटा कोलैबोरेट होकर आपका फॉलो अप कर रहा है। कंट्रोल इन्वेस्टमेंट है, आपको लगता है कि ये पीरियड में मेरे को एक दिन के लिए 1000 खर्चा करना, आप 1000 खर्चा करो। ये लगता है कि ये सीजन है, मेरे को 1 लाख खर्चा करना, आप 1 लाख खर्चा करना। आपको लगता है मेरे को इमीडिएटली रोक देना, आप इमीडिएटली रोक सकते हो। तो इट्स नॉट लाइक एनी अदर ट्रेडिशनल मीडियम जहां पे आपने एक बार दे दिया तो 1 महीना या एक न्यूज़पेपर में आपकी एड तो चली गई, हाथ में नहीं। दिस इज अ स्मार्ट अप्रोच विच इज स्पेसिफिक है, डिजिटल मेजर कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो, या उसको अकाउंटेबल बना सकते हो।
उसको रियलिस्टिक और टाइमली है, आप मेजर कर सकते हो इमीडिएट बेसिस पे। थर्ड, अगर आप नहीं यूज करते हो तो फास्ट डिसीजन मेकिंग आपको करते रहना पड़ता है। ग्लोबल कंपटीशन विल क्रिएट अ बिगर चैलेंज, सर्विस आपको देते रहनी पड़ेगी। यू वोंट बी, इफ यू कांट मैनेज योर डेटा तो मार्केटिंग 4.0 यूज करके फायदा नहीं होगा। अगर आप पैटर्न जो चेंज हो रहा है इसको यूज नहीं कर पाते, दैट्स अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। मार्केटिंग टूल्स फॉर 4.0, B2B के लिए कुछ अलग टूल्स है, B2C के लिए अलग टूल्स है। बाय एंड लार्ज है, जो लोगों का B2B बिजनेसेस है, वेबसाइट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, चाहे वो स्टैटिक वेबसाइट हो, ट्रांजैक्शनल वेबसाइट हो या ई कॉमर्स वेबसाइट हो। डिजिटल मार्केटिंग आपको यूज करना पड़ेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल एडवर्ड्स, कंटेंट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग हो गया जिसको हम ब्लॉगिंग की बात करते हैं। ओके, उसके बाद में सोशल मीडिया मार्केटिंग विल बी देयर। रीमार्केटिंग यूज कर, जो मैंने आपको बोला कि आपके वेबसाइट में ऐसे कुछ कोड्स डालो ताकि वो कोड को आप अपने गूगल पे डाल सकते हो, वो कोड को आप यूट्यूब पे डाल सकते हो, वो कोड को आप अपने फेसबुक पे डाल सकते हो। कुछ नॉर्मल लैंग्वेज यूज कर रहा है, आई एम नॉट यूजिंग एनी टेक्निकल जार्गन्स। ओके, तो ताकि आपका फॉलोअप, आपके एडवर्टीजमेंट्स उन आदमी को देखते रहेंगे। तो दिस इज लाइक अ बैनर एडवर्टीजमेंट बट टू स्पेसिफिक ऑडियंस ओनली। ईमेल मार्केटिंग विल प्ले वेरी क्रिटिकल रोल। फोर्थ लेवल पे आता है आपको सीआरएम डिप्लॉय करना होगा, लिंक्डइन मार्केटिंग यूज करनी होगी, सोशल मीडिया पे या गूगल के ऊपर में आपके रिव्यूज पे मैटर बहुत कर देंगे B2B बिजनेसेस के लिए। और B2 बिजनेसेस के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी विच इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। मान लो आपका कोई प्रोडक्ट है, ओके, अब मैं सेल्स का आदमी हूं, आप मेरे को बोलते हैं आशीष तुम भी इस प्रोडक्ट को बेचो मेरे, तो आप एक एफिलिएट कोड जनरेट करके देते हो। अब आपका प्रोडक्ट मैं जब बेचता हूं तो मैं जब भी आपके प्रोडक्ट का लिंक दूंगा उसमें एक एफिलिएट का कोड दूंगा। थोड़ा टेक्निकल है बट आई विल जस्ट रश इट फास्टर। तो एफिलिएट मार्केटिंग में जब मैं कोड डालता हूं, जब कभी भी आदमी मेरे कोड से आपके प्रोडक्ट को परचेस करेगा तो मेरे को उसका डिस्काउंट मिलेगा। इसका सिंपल एग्जांपल था, जब ओला और उबर को अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने थे इंडिया में, तो उन्होंने बोला आप ओला का उबर का ऐप डाउनलोड करो, कर लिया हमने। बाद में उसने बोला कि आप थोड़ा रेफरल कोड है, अगर ये रेफरल कोड से किसी और ने ऐप को डाउनलोड किया तो आपको 250 रुपए का कैप फ्री मिलेगा और उसको भी मिलेगा। तो इन शॉर्ट क्या हो गया, वो आप उसके सेल्स पर्सन बन गए, क्योंकि आपको 250 रुपए मिलते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था उसका ऐप प्रमोट करने में। और आपके एंड यूजर को भी अगर 250 रुपए मिलता है तो आपने उसको भी वैल्यू क्रिएट किया, इसलिए उसने भी डाउनलोड किया। और आपने ओला, आपने उबर, आपने फ्लिपकार्ट, आपने अमेजॉन, आपने मेक माई ट्रिप, आपने बुक माई शो, जो भी आप ऐप की बात करते हो, आपने कभी भी इनके सेल्स पर्सन को नहीं देखा है कि उन्होंने आके आपको बेचा है। तो इनकी सेल्स की कॉस्ट जीरो थी। They only invested into marketing. They only invested into affiliate marketing. और हर आदमी आज उनका ऐप यूज कर रहा है। वेरी इनक्रेडिबल, आपका कस्टमर आपका आपके ऐड को प्रमोट कर रहा है और आपको तो उसको तब पैसा देना है जब उसने आपका प्रोडक्शन सेल करवा दिया। तो B2C में जब आप जाते हो तो सबसे पहला प्लेटफॉर्म आपके लिए होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दूसरा होगा व्हाट्सएप मार्केटिंग। मैंने सीक्वेंस दिया कि कौन से प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप मार्केटिंग यूज करो, SMS मार्केटिंग यूज करो, फिर आता है ईमेल मार्केटिंग, फिर ऑनलाइन सेलिंग ऑन मार्केट प्लेसेस। ये प्रेजेंटेशन मैं कल दोपहर को बना था, ये न्यूज जो आई थी शाम को आई थी। अब आप अपने प्रोडक्ट को अमेजोन के, सॉरी, फेसबुक के ऊपर में, अपने प्रोडक्ट को व्हाट्सएप के ऊपर में सेल करना चालू करो, व्हाट्सएप बिजनेस पे अपग्रेड करो। जो हम लोग कल सेशन लेंगे उसके अंदर में मैं बात करूंगा उसके ऊपर डिटेल में। स्ट्रॉन्ग लोकल लिस्टिंग होनी चाहिए क्योंकि कस्टमर आपके उसमें केक शॉप नियर मी, फ्लोरिस्ट नियर मी, ओके, रेस्टोरेंट नियर मी, इसके साथ में आपने दिखना चाहिए। गूगल पे रिव्यू डालो और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज करो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये वो होती है जिनके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के हजारों लाखों फॉलोवर है। वो अगर आपके प्रोडक्ट को बोलते हैं कि बॉस टुडे आई हैड बीन टू दिस प्लेस, इनका प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है, आप इसको लो, तो आपका प्रोडक्ट का रेपुटेशन इमीडिएट बेसिस पे हाई हो जाता है। जब आप मार्केटिंग 4.0 पे जाते हो, थोड़ा रश कर रहा हूं मैं फास्टर, ओके, मार्केटिंग 4.0 पे जाते हो तो इसका बेनिफिट क्या होता है, आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट लो हो जाता है, आपका डेटा आपके पास में, और क्योंकि आप अपने डेटा को जाते हो तो आप डेटा को प्रॉपर तरीके से माइन कर सकते हो या उसको राइट तरीके से टारगेटिंग लगा सकते हो। KYC, नो योर कस्टमर बिहेवियर, ओके, क्योंकि आपको आपके कि मैंने आज ये मैसेज भेजा तो मेरे कस्टमर पे इसको मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स दिया, दूसरा भेजा तो उसको नहीं दिया। तो यू नो कि कौन सा कस्टमर आपके किस डेटा को, किस टाइप के कम्युनिकेशन को, किस वक्त में, किस मीडियम के थ्रू आपको ज्यादा एंगेज हो रहा है। आपका डेटा आपके खुद के पास है। आज आप
जो डेटा है ये डेटा किसी को, आज आप सेल्स पर्सन को लेते हो, सेल्स का डेटा लेता है, वो सेल्स का डेटा लेके जब कॉम्पिटिटर को ज्वाइन करता है तो आपने उसको सैलरी दी, मार्केटिंग की कॉस्ट लगाई, बट व्हेन ही गोज आउट विद द एंटायर डेटा, और वो उस डेटा के बेसिस पे सैलरी निगोशिएट करता है, अप्रेजल लेता है, आपका खुद कॉम्पिटिटर बन जाता है। वेरी क्रिटिकल थिंग। विथ मार्केटिंग 4.0 आप कंट्रोल कर सकते हो कम्युनिकेशन को, कि अभी समर सीजन आया तो मेरे यहाँ से जिन लोगों ने स्वेटर लिया है उनको मैं स्वेटर का मार्केटिंग करूं, या इस वक्त में कंस्ट्रक्शन सीजन चालू है या लोग अभी बाय कर रहे हैं तो उस वक्त में मैं अपने इंटीरियर डिजाइन के प्रोडक्ट को मार्केटिंग करूं। तो यू कैन डू दैट। ए बी टेस्टिंग होता है जहां पे एक ही कम्युनिकेशन को आप दो अलग अलग मैसेज के साथ भेजते हो, कई बार टेक्स्ट के साथ भेज सकते हो, कई बार ग्राफिक के साथ भेज सकते हो, कई बार आप दिन में भेजते हो, कई बार दोपहर को भेजते हो, शाम को भेजते हो, रात को। तो एंड यू अंडरस्टैंड कि मेरा कौन से टाइमिंग में कस्टमर ज्यादा एंगेज हो रहा है, तो बेस्ड ऑन दैट आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हो, और व्हाट वर्क्स यू रिपीट दैट। इंस्टेंट कम्युनिकेशन होता है, सेंटिमेंट एनालिसिस होती है, बजट आप खुद कंट्रोल करते हो। डेटा, अब आप जो डिसीजन मेकिंग लोगे ये गट फीलिंग पे नहीं होगी, ये डेटा पे होगा डिसीजन, साइंटिफिक डेटा पे होगा, एनालिटिकल डेटा के ऊपर में डिसीजन मेकिंग लोगे, तो आप गट फीलिंग पे डिसीजन नहीं लोगे। दूसरी चीज, मार्केटिंग 4.0 इज नॉट पे एंड पार्क मीडियम। टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, होर्डिंग, ये सारे मीडियम को मैं बोलता हूं दीज आर पे एंड पार्क। जब तक आप उनको पे करते हो उन्होंने आपको पार्क करके रखा है, आपकी खुद की इन्वेंट्री कुछ क्रिएट नहीं हुई है, आपने उनको पे करना बंद कर दिया, आपकी आपकी मार्केटिंग बैंडविड्थ जीरो हो गई। लेकिन यही इन्वेस्टमेंट आप अपने डेटा जनरेशन में, सीआरएम में, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब वीडियो पे, वेबसाइट पे डालते हो, तो ये पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट आपका पर्सनल है, और इसकी वैल्यूएशन आपकी खुद की है, एंड यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी आउटसाइड। दूसरी चीज है, आप अपने मार्केटिंग 4.0 मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को, टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे करके इवॉल्व कर सकते हो। आज हमने बेसिक पे बात की, कल हम शायद थोड़ा और लेवल पे बात करेंगे, फिर हम एडवांस लेवल पे चलेंगे। तो काफी सारी तरीके की चीजें। दूसरा है, आप अपने मार्केटिंग प्रोसेस को, टेक्नोलॉजी को ऑप्टिमाइज करते हुए चलते हैं। कुछ मार्केटिंग केस स्टडी की मैंने बात करते करते आपके साथ में बात कर लिया था, तो ये वही चीजें है। एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा लेता हूं, जोमैटो का एक लेता हूं। जोमैटो ने क्या किया था कि ड्यूरिंग लॉकडाउन, जोमैटो डोंट कुक फूड, ओके, दे जस्ट डिलीवर द फूड। अब जब होटल बंद हो गई तो जोमैटो से लोगों ने ऑर्डर लेना बंद कर दिया। जोमैटो से जो लाके रेफर नहीं करते थे या उबर इट्स से नहीं करते, तो व्हाट जोमैटो डिड, ओके, जोमैटो के पास में हजारों एम्प्लॉइज है, ओके। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम स्विगी ने अपने 1100 लोगों को ले ऑफ कर दिया, लेकिन जोमैटो ने बोला मेरे पास डेटा है, मेरे पास ऐप है, लोगों ने ऐप डाउनलोड किया हुआ है, तो व्हाट दे डिड इज दे गॉट ई पास फ्रॉम गवर्नमेंट, और उन्होंने अपने लोगों को ऑन द रोड कर दिया, और जो लोग बीच में अटके थे, फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या फिर कमोडिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उन लोगों ने उन लोगों के साथ कोलैबोरेट करके अपने लोकल डिलीवरीज को चालू कर दिया। सो अमेजिंग केस स्टडी। उसी तरीके से सेंट्रल मॉल ने क्या किया, सेंट्रल मॉल को पता था कि आई हैव अ केस स्टडी, उसका थोड़ा पीपीटी का लुक अलग है, बट इफ यू आर ओके, ठीक है, मैं थोड़ा टाइम, आई थिंक मैं उसके ऊपर अभी नहीं आता हूं, बट आई कैन प्रॉब्ली डिस्कस इट अप, या फिर मैं भेजता हूं आपको कैसे करना है, क्योंकि एज पर द टाइम लिमिट वी आर ऑलमोस्ट क्लोजिंग ऑन दैट। सो काफी सारा इनोवेशन हो गया। नाउ पॉइंट इज दैट योर नॉलेज इज ओनली गुड एज यू कैन एग्जीक्यूट। ज्ञान होके कोई फायदा नहीं अगर मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं करूं। तो जैसे मैंने बताया कि ये आज का सेशन वाज नॉट मेंट टू बी अ मोटिवेशनल प्रोग्राम, नॉट मेंट टू कि क्या करना चाहिए, बात इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कैसे करना चाहिए। तो कीपिंग दिस इन व्यू, वी आर गोइंग टू टेक अप अनदर 8 वर्कशॉप्स इन कमिंग 8 डेज। कल वर्कशॉप होगा मेरा व्हाट्सएप मार्केटिंग एंड हैक्स, फिर उसके बाद में होगा एक एक्समाइंड करके एक सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर आप अपना प्लानिंग कर सकते हो, कस्टमर ब्रांड एडवोकेसी कि आप अपने कस्टमर को अपना सेल्समैन कैसे बनाओ, ईमेल मार्केटिंग कैसे करना है, ग्राफिक विजुअलाइजेशन कैसे करना है, कैलेंडर एंड अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट कैसे करना है, कंटेंट मार्केटिंग कैसे करना है। आई जस्ट रन थ्रू दिस। सो व्हाट्सएप मार्केटिंग का कल जो मेरा सेशन है उसका कंटेंट होगा कि व्हाट्सएप पे आप अपना डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, फिल्टर कैसे कर सकते हो। आपके मोबाइल में 5000 कॉन्टैक्ट्स है, 5000 कॉन्टैक्ट में से 3500 लोगों के व्हाट्सएप नंबर है, बट यू डोंट नो किसका। तो वी विल टीच योर टूल, वी विल गिव योर टूल। इस टूल को यूज करके आप अपने पूरा कॉन्टैक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो विद द नेम एंड द कॉन्टैक्ट। तो ये आपको सिखाएंगे हम लोग डेटा जनरेशन किस तरीके से व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप कैटलॉग किस तरीके से होता है, बिजनेस व्हाट्सएप किस तरीके से आप यूज करते हो,
ब्रॉडकास्ट की लिस्ट कैसे क्रिएट करना है, ओके, लिस्ट की परमिशंस कैसे देनी है, व्हाट्सएप ग्रुप के एटिकेट्स और सेटिंग किस तरीके से की जाए कि प्राइवेट ऑनली है सब कुछ, व्हाट्सएप ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है कि आपका जब व्हाट्सएप पे आप बहुत 100-200 इमेजेस भेज देते हो, हजारों इमेज, तो आपका व्हाट्सएप हेवी होता है, तो उसको आर्काइव करके किस तरीके से ऑप्टिमाइज करें कि आपका व्हाट्सएप हेवी ना हो, बिजनेस एंड वेब व्हाट्सएप कैसे करो, और व्हाट्सएप का इंटीग्रेशन आप अपनी वेबसाइट में कैसे करें ताकि कोई आदमी आपकी वेबसाइट पे आता है मोबाइल से तो ही कैन इमीडिएटली चैट विथ यू ऑन व्हाट्सएप। ईमेल जब आप भेजो तो उसके एक क्लिक के ऊपर आपको व्हाट्सएप कैसे भेजिए, एसएमएस जब आप भेजो तो उसको एक ऐसा लिंक कैसे जनरेट करे कि लिंक पे क्लिक करे व्हाट्सएप कर सकता है, और व्हाट्सएप के चैट कैसे इंटीग्रेट की जाए सो दैट वी कैन चैट विद देम। और कस्टमर प्रेफर टू बी अपडेटेड ऑन व्हाट्सएप, डू यू नो मे, so it's appreciated, customer appreciate WhatsApp using on both personal and professional communication। रिस्पॉन्स व्हाट्सएप के आपको 10 टाइम फास्टर मिलता है कंपेयर टू ईमेल। अगर आज ईमेल आदमी 10 घंटे बाद देख रहा है तो व्हाट्सएप 1 घंटे बाद में देख रहा है। मॉस इट्स ऑल्सो मास कंटेंट डिस्ट्रीब्यूटर प्लेटफॉर्म, डजंट कॉस्ट अ सिंगल पेनी। एक्सप्लेन करके सॉफ्टवेयर है, बिकॉज आई बिलीव जब हम प्लानिंग करते हैं हम लोग पेपर पे प्लानिंग करते हैं, तो जब हम पेपर पे प्लानिंग करते हैं हमने कुछ ड्रॉ किया तो उसको एडिट करने का फैसिलिटी नहीं होता है, तो विच मीन दैट मोस्ट ऑफ द प्लानिंग ऑफ पेपर डजंट गेट एग्जीक्यूटेड ऑन पेपर, देयर इज नो स्ट्रेटेजी, डिफिकल्ट टू ट्रैक द प्रोग्रेस क्योंकि हम प्लानिंग इवॉल्व करते जाते हैं। तो एक एक्सप्लेन करके सॉफ्टवेयर विच आई टीच यू, बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको सेल्स और मार्केटिंग की प्लानिंग कैसे करो, कस्टमर को जर्नी कैसे प्लान करो कि कस्टमर मेरे पास आता है तो उसको परचेज ऑर्डर, तो ये पूरी की पूरी प्लान होकर एक फ्लो डायग्राम बनाया जा सकता है। टास्क मैनेजमेंट और अलोकेशन कैसे करें टीम में, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कैसे बनाए, डिसीजन मेकिंग एंड ट्रैकिंग कैसे करना है। कस्टमर ब्रांड एडवोकेसी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जहां पे आप अपने कस्टमर को अपना सेल्समैन कैसे बनाए एंड विदाउट ही नोइंग कि ही इज सेलिंग योर प्रोडक्ट, कि आप अपने कस्टमर को ग्रेटिट्यूड इज अ न्यू एटीट्यूड, गेट देम टू शेयर ओपिनियन, गूगल और सोशल मीडिया लव्स रिव्यू, तो उनसे रिव्यू कैसे ले, तो जस्ट सेइंग कि आप मेरे को रिव्यू तो डजंट हेल्प यू। यूट्यूब का कंटेंट कैसे क्रिएट करें, स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू मेक देम ब्रांड एडवोकेट, 80-20 रेवेन्यू कम फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर, तो ये कस्टमर को एंगेज कैसे करना है, decision making and tracking with the customer, referral from customer close faster, happy and engaged customer आपका marketing cost को reduce करता है, तो इनके साथ कैसे engage करें, उनके साथ में बैठ के एक केस स्टडी कैसे बनाई जाए, make them salesman without even knowing them। फिर ईमेल एटिकेट्स के ऊपर में बात करते हैं, ईमेल मार्केटिंग के ऊपर में कि ईमेल मार्केटिंग करने के लिए किस तरीके से ईमेल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म को सेटअप करें, आपका ईमेल जो है उसको इंपोर्ट कैसे करें, ईमेल में आपका मार्केटिंग का कैंपेन कैसे सेटअप करें, डेटाबेस को कैसे अलग अलग चीज में जाए, क्योंकि ईमेल इज चीपर, इंस्टेंट डिलीवरी करती है, यू कैन पर्सनलाइज, ए बी टेस्टिंग कर सकते हो। कई सारे लोग इसमें ईमेल का डेटाबेस बहुत है लेकिन वो लोग सीसी या बीसीसी करके लोगों को भेज देते हैं, विच इज नॉट अ पर्सनल कम्युनिकेशन। ईमेल मार्केटिंग में कहा जाता है कि एवरी $1 यू स्पेंड ऑन ईमेल डिपेंडिंग फ्रॉम इंडस्ट्री इज गिव यू ROI ऑफ $42। ओके, और ईमेल में भी एक कई सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए क्योंकि वही प्लेटफॉर्म को अगर किसी और ने यूज किया तो वो ये भी एनालाइज करता है कि इस आदमी को मैंने ये टाइम पे डिलीवरी करनी चाहिए। तो वी विल टीच यू, वी विल हेल्प यू डिप्लॉय द एंटायर सॉफ्टवेयर एट योर प्रीमाइसेस। आपका जो ईमेल कॉन्टैक्ट जीमेल में है, जीमेल से ईमेल को कैसे एक्सट्रैक्ट करे और इसमें कैसे इंपोर्ट करे, और ये ईमेल जानने के बाद में इनकी ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करे। तो दिस विल बी अ फुल फ्लेज्ड वेरी फैंटास्टिक एप्लीकेशन, बिकॉज ये ऐसी चीजें यूजिंग टेक्नोलॉजी मैंने 20 साल में नहीं किया, लेकिन ये लॉकडाउन में मैंने ईमेल मार्केटिंग आई हैड यूज्ड इट टू ड्रास्टिक लेवल। फिर बात होती है, हमने सोशल मीडिया की बात की, तो इफ यू वांट टू लर्न कि ग्राफिक डिजाइनिंग मेरे को कैसे करना है विदाउट लर्निंग कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप एंड मोबाइल, सो वी विल टीच यू हाउ टू मेक अ क्रिएटिव पोस्ट, नो नीड ऑफ टेक्निकल नॉलेज, 1000 के ऊपर में टेम्पलेट अलाइंड है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है कि ये इमेज लिया, ये कंटेंट डाला, इसको ड्रैग कर लिया, और इसके थ्रू आप अपने सोशल मीडिया का पोस्ट बना सकते हो, ईमेल डिजाइन बना सकते हो, न्यूज लेटर बना सकते हो, प्रमोशनल डिजाइन बना सकते हो, थैंक यू मेलर बना सकते हो। तो ये जो भी प्रेजेंटेशन जो अभी मैं आपके सामने रन किया, दिस हैज गॉट डिराइव्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, सो वी विल टीच यू द सॉफ्टवेयर। अगेन सब्सक्रिप्शन ऑफ दैट सॉफ्टवेयर इज फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर बात आती है कि कैलेंडर मैनेज, कई सारे लोगों को कैलेंडर नहीं पता होता है। अगर मेरे को ये रिव्यू करना है कि मैंने 1 महीने में क्या किया, तो मैं अपना कैलेंडर ओपन करता हूं, बिकॉज आई विल नॉट मीट, आई विल नॉट इंटरेक्ट, मैं कोई फोन कॉल पे नहीं जाऊंगा जब तक मेरे पास ये नहीं है। तो पीपल डोंट नो हाउ टू यूज अ कैलेंडर, अंडरस्टैंडिंग योर टाइम इन्वेस्टमेंट, कि आपने 1 महीने में कहाँ पे टाइम इन्वेस्ट किया, कितना टाइम इन्वेस्ट किया, किन लोगों के साथ में। तो एक कैलेंडर आपको बताते हैं कि 1 महीने में 5 मई को मैंने किसके साथ कितने दिन बात किया था, या अभी
30 तारीख को मेरे कितने लोगों के साथ में अपॉइंटमेंट शेड्यूल, तो वी विल टीच यू अपॉन दैट। और ये सिंक आपके मोबाइल पे, ईमेल पे, लैपटॉप पे, सब जगह पे किस तरीके से सिंक अप हो जाता है। फिर आती है बात वीडियो कंटेंटिंग में कि आप वीडियो कैसे बनाएं। वीडियो मार्केटिंग की बात है कि वीडियो बनाना सस्ता है। सीइंग इज बिलीविंग, पीपल विल बिलीव यू अ लॉट। कॉन्फिडेंस अगर बिल्ड करना है तो वीडियो होना बहुत जरूरी है। आपको आपकी रेपुटेशन बिल्ड करना है तो आपको वीडियो बनाना जरूरी है। प्रमोट क्या करोगे, कई लोगों को लगता है कि वीडियो बना लूंगा लेकिन डालूंगा क्या। उस पर आप अपने थॉट्स डालो, अपने प्रोडक्ट के बारे में करो, अपने सर्विसेज करो, अपने कस्टमर के साथ में इंटरव्यूज डालना चालू करो, कस्टमर के हैप्पी कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स डालो। तो वी विल टॉक ऑन दैट बिकॉज यूट्यूब इज द सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजिन। लोगों को सबसे ज्यादा चिंता लगती है कि वीडियो जैसी आता है तो मैं वीडियो के सामने भी बोल नहीं पाता हूँ। तो वी विल ऑल्सो गिव यू सब्सक्रिप्शन ऑफ कपल ऑफ वीडियोस कि जहां पे आपको बोलेगा कि कैसे कैसे फेस करे, कैसे एंगल में जाए, वो किस तरीके से वीडियो के कंटेंट को डिलीवरी करे और यूट्यूब पे अपलोड कैसे करें। लोग सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों को छोड़ दो, वैसे भी आप नहीं डाले तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब आपको अगर अपनी दुकानदारी चलानी है, बिजनेस चलानी है, तो वीडियो कंटेंट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कस्टमर के सामने खड़े होकर उसको सेल कर सकते हो तो वीडियो के थ्रू क्यों नहीं कर सकते हो। फॉरगेट हाउ विल आई लुक, ओके, कि मैं कैसा लगूंगा। लोगों को लगता है बहुत ज्यादा मार्केटिंग तो नहीं लगती है, या लोगों को लगता है कि मैं कल से करता हूं, कल नहीं आया आज तक, एंड मैं बहुत परफेक्ट होना चाहता हूं। लोगों को लगता है जब मैं बोलूं तो अमिताभ बच्चन जैसे लगूं, शाहरुख खान। नो, आप अपने बिजनेस के खुद अमिताभ बच्चन हो, खुद शाहरुख खान हो, आप अपने बिजनेस के खुद नरेंद्र मोदी हो। द वे यू टॉक इज गुड, ओके। लोगों को लगता है कि बहुत टेक्निकल होता है। यूट्यूब के अंदर में वीडियो एडिटर आ चुका है, सो दैट यू कैन अपलोड योर इमेजेस, यू कैन अपलोड योर वीडियो, और आप जाके विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज खुद एडिट कर सकते हो बेसिक लेवल के ऊपर में। फिर एक सेशन होगा जहां पे वी विल टीच यू कि लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे मैनेज किया जाए। B2B बिजनेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू विल लर्न इज प्रोफाइल एंड पेज मैनेजमेंट। प्रोफाइल अपना कैसा हो, फोटो कैसे डाले, नाम कैसा डाले, टाइटल कैसा होना चाहिए, आपका बायोशीट कैसा होना चाहिए, कैसे इनवाइट लोगों को भेजना चाहिए, किस तरीके के लोगों को इनवाइट भेजना है। बहुत सारे लिंक्डइन में ग्रुप है आपकी इंडस्ट्री के, उसको ज्वाइन कैसे करना है, उसमें कन्वर्सेशन कैसे करना है, वहां पे अपने कस्टमर के साथ कैसे करेगा। आई विल ऑल्सो शेयर विथ यू अराउंड 20 और डिफरेंट टेम्पलेट्स कि आपको अगर कनेक्शन करना है तो ये टेम्पलेट को यूज करो, कनेक्शन होने के बाद में ये टेम्पलेट को यूज करो, आपने अपने कस्टमर को फॉलो कैसे करना है, आपने अपने ब्लॉग कैसे डालने हैं, क्रिएटिव कैसे। तो लॉट्स ऑफ, सो टुडे आई एम बीइंग फॉलोड बाय 20,000, close to 19,500 people on LinkedIn. And I'll tell you, major source of my marketing branding doesn't come from my sales team, it comes from my social media team. We are 70 people team, और इस 70 लोगों को पूरा का पूरा मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म मैनेज करता है। लिंक्डइन का फैक्ट ये है कि ओनली प्लेस टू फाइंड योर कस्टमर, ओके। एक कस्टमर मेरे को फाइंड करता है गूगल पे, लेकिन मैं कस्टमर को फाइंड करता हूँ लिंक्डइन के ऊपर में। पीपल आर कंफर्टेबल टू डिस्कस अपॉर्चुनिटी, गुड, one of the good source for recruitment also. Promote your organization culture and the product, okay. अब ये जो हमने बात की, दिस ऑल सर्विसेज पैकेजेस का मैं आपको लिंक भेज दूंगा, बट अदरवाइज यू कैन फाइंड दिस आउट। मैं भी चैट विंडो के साथ में, I'll just end up this particular thing and I'll come on live right now, okay. So the entire objective of this particular session was to let you know this entire session, okay. And if you want to purchase this or if you want to view on this, we will start immediately. We are not going to take a lot of time. Just a minute. तो ये जो पर्टिकुलर इवेंट की जो मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ में, if you want to subscribe for this particular thing, this is available through this link. I'm just sending this across to all the people. मैं आपको email पे भी भेज दूंगा ये, so you can buy all those things from here. So now I am open for question and answers, okay. So you can type in your questions on the chat box and I will be happy to address. So we are exceeded 10 minutes precisely than compared to the time of 12:15, but I am any which was available. So one of the snapshot was we were being attended by 265 people during this entire course, and then couple of more people, hundreds of more people on Facebook as well. But for me, important was not how many people attended this session. Important is how relevant was I in addressing the thing. तो अभी आपके जो भी क्वेश्चन आंसर, you can put it up over there. Any which ways, I am available for offline discussions also. My only request would be, ये जो courses की जो मैंने बात की, my agenda and objective is not to make it free and not to make it too costly also. 500 रुपए के courses है, but एक डेढ़ घंटे के अंदर में आज जो हम लोगों ने चीजों को सीखा हुआ है, ये चीजों को इंप्लीमेंट करना मैं सिखाऊंगा।
because we are one of the very prominent digital marketing agency. तो मेरे को ये लगता है कि people who can afford us should come to us, but people who cannot afford us at this point of time, they should not hesitate or doing it on their own. तो whatever is my experience, ये पूरा का पूरा experience मैं आपको अगले 7 दिन के कोर्सेज के साथ में दूंगा. Whether 1 person join or 200 people join, we will be doing this session throughout. सेशन के जो टाइमिंग्स होंगे वो होंगे करीबन 11 से 12:30 1 बजे के बीच में, और ये पूरे के पूरे जो सेशंस होंगे, दिस आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली अ प्रैक्टिकल सेशंस ओनली. एक दिन एक टॉपिक, फुल मास्टरी ऑन दैट. या सो आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस. इफ यू फील no questions, we are officially done with the session. You may leave, okay, but if you want more questions, I can continue with the session. But yes, official time of the session we had crossed upon that. Thanks a lot everyone. By the way, I am, as I said, available for question. इंटरेक्शन कर सकते हैं हम लोग अभी भी इसके साथ में. कई लोग ऐसे जो पैनल पे आना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, रेज मी, आई विल मेक यू कम ऑन अ पैनल ऑल्सो, एंड you can come, you can chat, and then we can discuss it as well. तो आप अपना नाम ले सकते हो. Otherwise, yes, you are absolutely free to take your call and leave the sessions. So I will be the last person to leave. So Rajesh Shevani ने पूछा है, sir, Rajesh ji, is it okay if I make you on a panel and if you want to ask a question? So if you say me yes, only then I will make you come on a panel. So Rajesh Shivani, I think you run one of the biggest retailer brand, if I'm not wrong, at Lakshmi Road. So you can just let me know which particular brand, and if you're okay to come on the screen and discuss with me, आप मेरे को 1-to-1 भी chat कर सकते हो, because I don't want to take you up without your permission. तो राजेश जी, आप कौन सा स्टोर रन करते हो? तो कैलाश जी ने पूछा है कि अच्छा सेशन लगा. सी, अच्छा सेशन मैंने जैसे बोला है, दिस सेशन इज ओनली गुड इफ यू आर एबल टू इंप्लीमेंट, अदरवाइज दिस विल बिकम अनदर मोटिवेशनल प्रोग्राम. एंड माय रिक्वेस्ट इज, प्लीज डोंट टेक दिस अप एज मोटिवेशन. इफ यू रियली वांट टू कमांड योर बिजनेस, प्लीज गेट ऑन अ ड्राइविंग सीट, स्टार्ट ड्राइविंग योर व्हीकल. इट्स ओनली देन. अभी आपकी नैया आपको खुद को पार लगानी होगी. सो किसी ने पूछा है कन्वर्जन रेशियो ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी लो. सी, हर चीज का कन्वर्जन रेशियो लो होता है, ओके, बट पॉइंट इज दैट जब आप कंटिन्यू करते जाते हो तो उसका रेशियो बढ़ता चला जाता है. अगर आप ये ऑब्जेक्टिव के से आते हो, मैंने अभी बटन दबाया और अभी इसका मैगी जैसी चीज नहीं है सर कि आपने काटा डाला 2 मिनट में बन गया. इट रिक्वायर्स अ प्रोसेस. अगर ऐसा होता तो हर आदमी आज डिजिटल पे चला जाता, हर आदमी दूसरे दिन से सेल करना चालू होता. सो किसी ने पूछा है व्हाट इज द रोल ऑफ सेल्स पर्सन इन दिस मार्केटिंग. सी, सेल्स पर्सन इंपॉर्टेंट है. आई एम टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग पर्सन. आपका ट्रांजैक्शन क्लोज करने के लिए आपको सेल्स पर्सन लगेगा, लेकिन आपको मार्केटिंग, ब्रांडिंग, लीड जनरेट करने के लिए प्लेटफॉर्म को यूज करना होगा. बिकॉज सेलिंग तो शायद आपको करनी पड़ेगी. मैं ये अभी आप इमीडिएटली अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे नहीं होगी कि लोग आएंगे, देखेंगे, परचेस करेंगे, पैसा देंगे, लेके चले जाएंगे. इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, बट देयर शुड बी एन हाइब्रिड अप्रोच टू इट. हाइब्रिड अप्रोच के साथ में इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको इमीडिएटली उधर भी ना जाओ, इमीडिएटली इधर भी ना जाए. ओके, प्लीज स्टार्ट यूजिंग इट इन 1 by 1. कई सारे लोगों ने पूछा है कि लिंक चाहिए. मैं आपको ये सेशन होने के बाद में एक ईमेल के ऊपर में, व्हाट्सएप के ऊपर में लिंक दे दूंगा, सो दैट यू कैन डू इट अप ओवर देयर. बट डू ज्वाइन. It's not about you paying me 500 rupees. It's about what kind of a revenue. क्योंकि ये सारी 20 साल का जो मेरा अनुभव है इतने क्लाइंटेल के साथ में जो मैंने काम किया हुआ है, that is what I am going to discuss with you over there. और हम लोग करते रहेंगे टाइम टू टाइम कुछ चीजों के बीच में, कि कुछ फ्री रखेंगे, कुछ सेशन रखेंगे, बट आई वांट सीरियस पीपल टू कम एंड अटेंड द सेशंस. तो किसी ने पूछा है which web templates are available. There are lots of websites available if you look up at it, but I will take you only on 1 and 2 softwares जो बहुत इफेक्टिव है. मेरे को लगता है ये काम कर से क्या होता है, हम 50 जगह पे अपना अकाउंट खोल लेते हैं, लेकिन उसको यूज नहीं कर पाते. अगर वो सारी चीज करेंगे तो फायदा नहीं है. एक ही सॉफ्टवेयर को लो, उसका मास्टर बनो, काम खत्म करो. थैंक यू हितेंद्र भाई फॉर जो आई हैव बीन नोइंग यू सिंस लायंस डे. You have been doing an amazing work. Sunil ji Patil, if I am not wrong, you are from an MIT, right? If I am not wrong. So I might, Sunil ji,
मेडा, मेडा, okay. So yeah, so we still are around 145 odd people. If someone wants to come on a panel and want to discuss anything, want to have an interactive thing, most welcome. मैं शायद चैट विंडो के अंदर में शायद नहीं देख पा रहा हूँ शायद, तो आप मेरे को क्वेश्चन आंसर के अंदर में भी डाल सकते हो. तो यू कैन पुट इट अप, क्योंकि चैट में काफी सारे चैट चल रहे हैं, तो प्रॉब्लली आई एम नॉट एबल टू सी दैट. प्लीज लेट मी नो इफ वी कैन गो ओवर द बेसिक क्वेश्चन. ये अगले 8-9 जो सेशंस होंगे, इन सारे सेशंस के हम लोग एक एक टॉपिक लेके चलेंगे. एज ए सेड, मैं एक ही जगह पे अगर सारी चीज एड्रेस करूंगा तो शायद वो एब्जॉर्प्शन के लिए मुश्किल जाएगा. इसलिए जो मैंने आपको वेब लिंक जो दी हुई है, आई एम अगेन पेस्टिंग अप द वेब लिंक ओवर हियर. इस वेब लिंक पे जाके आप सब्सक्राइब करिए, उसके शेड्यूल्स वगैरह दिए हुए. तो राजेश शेवानी इज फ्रॉम रंगोली ग्रुप. तो राजेश जी, इफ यू वांट टू कम ऑन अ पैनल, इफ यू वांट टू टॉक ऑन समथिंग, most welcome. Just ping me, I will be there. And you can also take my WhatsApp number. तो इस WhatsApp के साथ में भी आप मेरे को पिंग कर सकते हो. So I might not take up the numbers quite a lot, क्योंकि अगर काफी, क्योंकि जनरली ये सेशन में 100 कॉल आते हैं. But yes, try to send me WhatsApp. I will try to address most of this. And my email is this. अगर आप कोई चाहते हो कि व्हाट्सएप में को डायरेक्टली करना है, तो आई ऑल्सो गिव यू, जो मैंने बात किया था, दिस इज माय लिंक. आप इस लिंक पे क्लिक करके मेरे को सीधा व्हाट्सएप कर सकते हो विदाउट सेविंग माय नंबर ऑल्सो. तो ये कुछ अभी जो मैं आपके साथ करने वाला हूँ, ये इस तरीके के कुछ हैक दिखाऊंगा जहां पे पीपल कैन जस्ट सेंड योर व्हाट्सएप. अभी जो मैंने आपको लिंक दिया है, इस लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो यू डोंट हैव टू सेव माय नंबर, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस लिंक, और ये लिंक पे क्लिक करोगे, आपका इमीडिएट व्हाट्सएप पे को आ जाएगा, चाहे आप मोबाइल पे हो कि कैसे भी हो. तो ये ऐसे कुछ हैक्स है व्हाट्सएप के अंदर में जो आपको ऑप्टिमाइज करता है. एक सेशन में बाद में आईफोन हैक के ऊपर में लूंगा. लोगों ने लाख रुपए के सॉफ्टवेयर लिए हैं, बट वी यूज प्रॉब्ली 5% ऑफ मैक और आईफोन. तो मैक और आईफोन के अंदर में भी कई ऐसे टूल्स, कई ऐसे सॉफ्ट फीचर्स है जो आपने यूज करने चाहिए. अदरवाइज वो आप जो पैसा दे रहे हो 1 लाख रुपए का दे रहे हो, लेकिन जो यूटिलिटी यूज कर रहे हो शायद 10-20 हजार रुपए का ही कर रहे हो. सो दैट्स हाउ वी विल टेक इट अप फ्रॉम देयर. So we will talk about marketing to overseas buyers also. See, आदित्य शर्मा ने एक प्रश्न पूछा है. I'll tell you one thing. आप लोगों ने कई सारे बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स के सेशन सुने हैं मार्केटिंग के ऊपर में, सेल्स के ऊपर में. तो मैं वो चीज पे नहीं टच करना चाहता. मेरा बात ये है कि जो आपने सीखा है उसको एंड डिलीवरी कैसी की जाए. ओके, एसईओ का जो हम लोग एक सेशन लेंगे, उस सेशन में हम बात करेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, किस तरीके से. I cannot teach you SEO because वो टेक्निकल चीज है. या सोशल मीडिया I can teach you, ईमेल मार्केटिंग I can teach you, गूगल एडवर्ड्स के ऊपर भी शायद हम लोग एक सी आई एम नॉट श्योर, थोड़ा धीरे धीरे करके हम लोग इसको बिल्ट अप करेंगे. ओके, एंड पॉइंट यही है कि वॉट एवर नॉलेज आई हैव, जो 60-70 लोग है मेरे, अलग अलग लोग अलग अलग चीज के ऊपर में एक्सपर्ट है, वी विल गेट देम ऑन बोर्डेड ऑन को पैनल विथ मी, and we will see to it that they deliver the content to you and I will be on a panel, ताकि मैं उनका टेक्निकल कंटेंट को आपके समझने वाले कंटेंट के साथ में कोलैबोरेट कर पाऊं. तो आप वो टैब को फॉलो करते रहो, वहां पे एक एक प्रोग्राम हमारे आते रहेंगे. सो डू सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम so that we can help you. जैसे मैंने बताया है कि I will also send you the link also, but don't wait for the link to come. You can subscribe. If you have any particular question, I am in which way. एक और चीज होगी शायद जिसके ऊपर मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ में, कि कई सारे लोग अभी अपने लोकल हाइपर मार्केट ऐप भी बना सकते हैं. मान लो आप जिस जगह पे हो और आप उस एरिया में रिटेल का बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, फूड का बिजनेस है, काफी ऐसे शूज के बिजनेस, तो आप लोग सब मिलके अपना एक अमेजॉन प्लेटफॉर्म कैसे बना सकते हो ताकि आपका लोकल रेपुटेशन, लोकल ब्रांड भी रहे और साथ में कस्टमर का ट्रस्ट भी रहे और आपकी डिलीवरी 1 घंटे में हो जाए. आई टेल यू दिस विल बी अ बिगेस्ट कंपटीशन गोइंग फॉरवर्ड टू अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, क्योंकि उसके साथ में जो डिलीवरी करने वाला आई डोंट नो देम. तो अगर हम एक लोकल हाइपर मार्केट ऐप बनाते हैं, लोकल हाइपर मार्केट ई कॉमर्स बनाते हैं, तो उस के थ्रू हमारे पास एक तो बड़ा मसल पावर, बड़ी टीम, बड़ी कॉस्टिंग और बड़ा मार्केटिंग बजट बनता है, क्योंकि हर आदमी उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन आपका ट्रस्ट रिटेन होता है. तो आज अगर मान लो मैं पूना में एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं लक्ष्मी रोड पे जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ क्योंकि वो इतने सालों से 50-100 सालों से वो जगह है.
तो वहां पे जब मैं जाता हूँ परचेस करने के लिए, मेरे को पता है कि ये दुकान का ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी। लेकिन अगर lakshmiroad.com करके अगर एक ई कॉमर्स बनाया जाए जहां पे उस एरिया के जितने भी लोग सेलर्स है उनको ऑनबोर्ड किया जाए, ओके, और ऑनबोर्ड करने के बाद में इन लोगों को एक ऐप दिया जाए, वो अपना प्रोडक्ट डिलीवर करें, लोग आपके ब्रांड के साथ में परचेस करेंगे और डोंजो इस तरीके के लोगों के साथ में डिलीवरी कर पाएंगे। सो टुमारो टाइम, इफ आई हैव नॉट कंफर्म, आई विल कंफर्म यू द टाइमिंग। और वो वाले जो सेशन होंगे, वी विल नॉट डू इट ओवर वेबिनार, विल डू इट ओवर जूम मीटिंग, बिकॉज वी विल डू लॉट ऑफ कन्वर्सेशन। आज का जो था इट वाज वेबिनार, सो लॉट्स ऑफ पीपल हैड अ क्वेश्चन बट डिडंट हैड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटरेक्टिंग, क्योंकि सेशन मेरे को कवर अप करना था। बट बाकी के जो सेशन होंगे वो मीटिंग फॉर्मेट में होंगे, और उन मीटिंग फॉर्मेट्स के अंदर में इट विल बी म्यूट, अनम्यूट एंड डिलीवरीज एंड इंटरेक्शन। Point is you should be able to use the technology, the session immediately once the session is over. I am also not talking, और कोई सेशन में हम टेक्नोलॉजीज की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को एज अ नॉर्मल बिजनेसमैन, नॉर्मल सेल्स पर्सन, नॉर्मल मार्केटिंग पर्सन, मैं उसको यूज किस तरीके से करूं। तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट सो सिंपल, okay, but don't expect you will become an expert and pro, but yes, you will be able to start using it to an extent. So you can subscribe for one program, second program, third program, 6-7 programs वहां पे डाले हुए हैं, और आपको जैसे भी लगता है, so you can use it up from there. So don't worry about your payment, you will be delivered a good content. This is for the first time I am taking up a paid session, though I have been active on a lot of other different forums, on social media forums, on physical forums, discussing on the content. Do check out my website if you want to understand the reputation. Okay, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली टाइप की चीज होती है, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको डिलीवरी करने वाला आदमी कौन सामने बैठा है। सर्च मी ऑन लिंक्डइन विद आशीष डालिया टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल क्रेडिबिलिटी, किस तरीके की न्यूज, किस तरीके के प्लेटफॉर्म पे हम लोग जाते हैं, बिकॉज आई ओनली बिलीव इन वन थिंग, सीइंग इज बिलीविंग। डोंट ब्लाइंडली डू इट बिकॉज यू हैव मनी एंड देयर इज एन इंटेंट, बट यस, ओनली रजिस्टर इफ यू वांट टू यूज इट। If you don't want to use it, please don't register for the program, because knowing is nothing. So your knowledge is only as good as you can use it. Thank you. So there have been around 32 questions on the question answer session, couple of chats. So I'm absolutely amazed the way it had been. I wasn't expecting such great response. So if you find the value in it, thank you very much. So someone kindly refer to touch and feel product for laminates. Yes, Sanjay ji Banerjee, आपने क्वेश्चन पूछा है मेरे को कि for laminate भी. So as I said, I cannot talk laminate or pharmaceutical कि तेल कैसे बेचे, साबुन कैसे, but generally जो मैं बात करूंगा वो बिजनेस की, आपका प्रोडक्ट कुछ भी रहने दो। See, Amazon किसी को भी बेचता है, वो आपका मोबाइल फोन बेचता है, केबल बेचता है, कपड़े बेचता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बेचता है, वो अपने मार्केटिंग टेक्नोलॉजीज को आपके प्रोडक्ट तक पहुंचाता है। तो जो मैं बात करूंगा, आई विल नॉट टॉक प्रोबेबली कि आप लैमिनेट कैसे बेचो, बिकॉज अदर पीपल माइट नॉट बी इंटरेस्टेड। मैं बात करूंगा कि आप टेक्नोलॉजी को कैसे स्टिच करें, फिर आपका प्रोडक्ट उसके थ्रू अपने आप ही चला जाएगा। So Nilakshi has asked how to organize offline data which is collected in hand. तो ये जो WhatsApp मार्केटिंग का सेशन होगा, ईमेल मार्केटिंग का सेशन होगा, ये दो सेशन में हम उन सारी चीजों को कवर अप करेंगे। Because as I said, data is king and technology is kingdom. So you will have to see king को kingdom में लाना पड़ेगा, तब जाके protected होगा। A kingdom without king is of no use, and king without kingdom is no protected. So I'm just taking up a couple of questions. Till when the meeting continues? So when you say customer will look at lower cost, but due to COVID, our costs are expected to go up. Okay. So if your cost has gone up, as a buyer, I am not interested. क्योंकि मेरा खुद का अर्निंग भी कम हो चुका है सर। प्रशांत ने क्वेश्चन पूछा था कि कॉस्ट बढ़ चुकी है, आपको कॉस्ट ऑप्टिमाइज करनी ही पड़ेगी। ओके, प्रीमियम पोजीशनिंग नहीं चलेगी, वो मार्जिन नहीं चलेगा, आपको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा और आपको ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट करनी पड़ेगी। सो मेरा कॉस्ट बढ़ गया, आपका कॉस्ट बढ़ गया, लेकिन कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता है।
सो किसी ने पूछा कैन वी क्रिएट मल्टीपल कैटलॉग इन व्हाट्सएप? यस, यू कैन क्रिएट मल्टीपल कैटलॉग इन व्हाट्सएप. सेंड मी द लिंक ऑफ व्हाट्सएप वेबिनार लिंक. तो मैंने लिंक भेजा हुआ है आपको. मैं लिंक फिर भी यहाँ पे भेज देता हूँ जिसने मेरे को पूछा था. ओके, लिंक मैंने वैसे भेजा है. अदरवाइज जिन जिन लोगों ने अटेंड किया, आई विल बी हैविंग योर ईमेल एंड मोबाइल नंबर्स. आई विल सेंड यू दिस. गूगल एडवर्ड पीपीसी हम लोग करेंगे, लेकिन हम थोड़ा उसको बाद में लेंगे, क्योंकि उसके पहले बेसिक्स और फंडामेंटल समझना जरूरी होगा कि मार्केटिंग ऑटोमेशन 4.0 के ऊपर में. वो भी सी गूगल एडवर्ड पीपीसी वाला जो हम लोग चीजों पे बात कर रहे हैं वो पेड मीडियम में आ जाता है. बट पहले क्यों ना हम लोग वो चीज करें जो फ्री में अवेलेबल है. So recording will be made available. You can have this particular recording on my Facebook page. Okay, search me on YouTube and the recording will be made available. I'll also upload this recording on YouTube and share a link with you all. But I think there is nothing more to be seen on a YouTube because 1.5 घंटे का सेशन वापस से क्यों बैठना है आपको देख के. So बार बार वो है ना, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयानक हुए. बार बार करके कुछ नहीं होगा. अभी आप इसको इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है वो चीज के ऊपर में ध्यान दीजिए. तो चित्रशील ने पूछा इफ यू परचेज ऑल कोर्स एट वंस इज देयर एनी डिस्काउंट? सी मैं आपको जीरो कॉस्ट पे भी दे सकता हूँ. बट पॉइंट इज होता है कि जब हम नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज को भी हम निगोशिएट करते हैं तो ये चैलेंज आ जाता है कि इज इट रियली वर्थ. ओके, तो आई कैन डिलीवर द एंटायर कंटेंट टू एट फ्री ऑफ कॉस्ट. क्योंकि लेकिन एज आई सेड आई ओनली वांट पीपल हु आर सीरियस टू कम एंड अटेंड इट. ओके, तो जब आप कोर्स नॉलेज जो आपको डायरेक्टली इंपैक्ट करना चाहते हो तो डोंट लुक इट अप फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव. क्योंकि आप एक ही कोर्स के लिए साइन अप करो, विच इज एब्सोल्युटली ओके. चेक आउट द कंटेंट, देन मूव आउट टू अनदर वन, देन मूव आउट टू अनदर वन rather than purchasing all. बट इफ यू परचेज ऑल, आपको ये रहता है कि कमिटमेंट रहती है मेरी. एंड यू नो कि ये 4-6 चीजें जो है मेरे को ये सारी की सारी चीजें सीखना है और मैं सीख लूंगा. एंड एज आई मेंशन, अगर एक आदमी है, 2 आदमी, आज सेशन में करीबन 300 लोगों ने अटेंड किया, so for me number doesn't matter because my revenue doesn't comes from this particular 500 rupees courses. Okay, it comes from a real, once you start using it to an extent, I want you to grow your business so that tomorrow you come down to a level where you can afford an agency like us. but वो जर्नी तक के मेरे को आपको DIY do it yourself मोड में आपको लेके जाना है. और ये सेशन होने के बाद में भी शायद हम लोग फॉलो अप सेशन रखेंगे फॉर ऑल द पीपल. सो डोंट वरी. तो हम लोग एक अलुमनी कम्युनिटी बना लेंगे, एक नॉलेज कम्युनिटी या मार्केटिंग 4.0 कम्युनिटी हम लोग बना लेंगे. और इस कम्युनिटी के अंदर में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कशन करते हैं. सो डोंट वरी, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, कंटेंट बनेंगे. सो नथिंग इज बीइंग फ्रोजन राइट नाउ. एज वी मूव फॉरवर्ड हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी टाइम टू टाइम चलते रहेंगे. सो वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग बिकॉज देयर आर स्टिल 81 पीपल हु हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन टू आस्क. So I'll just check out couple of more question if you have. Can we use social media marketing for service marketing? See, social media marketing आप अपने personal branding. Pooja Raut had asked a question, how to use social media marketing for service marketing. See, social media marketing, digital marketing, LinkedIn marketing, email marketing, तो 3 मार्केटिंग के एवेन्यूज होते हैं. एक आपका पर्सनल ब्रांडिंग होता है, एक आपका ऑर्गेनाइजेशन ब्रांडिंग होता है और आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केटिंग होता है. आपको देखना है इस वक्त में आपको क्या चीज के लिए यूज करना है. अगर मैं ट्रेनर हूं तो मेरे को तो बट नेचुरल कि अपना पर्सनल ब्रांडिंग करना है. लेकिन अगर मैं कोई बड़ा बिजनेस हाउस हूं तो मेरे को तीनों चीज को, मैं पर्सनल ब्रांडिंग भी करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन ब्रांडिंग भी करनी होगी, प्रोडक्ट ब्रांडिंग भी करना होगा. तो अलग अलग लोगों को ये ब्रांडिंग को अपने तरीके से डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेट करके काम चलना पड़ेगा. क्योंकि एक दवा हर बीमारी का इलाज नहीं है. सो डिफरेंट इलनेस, वेलनेस और डिफरेंट रिक्वायरमेंट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एन प्रेस्क्रिप्शन. तो हम लोग उन सारी चीजों पे बात करेंगे. तो मोहन चोलकर, इज इट नेसेसरी टू अटेंड योर सब्सिक्वेंट ऑनलाइन प्रोग्राम और टेक योर हेल्प फॉर डिजिटल मार्केटिंग? तो मैं क्वेश्चन समझा नहीं. इज इट मोहन चोलकर ने पूछा इज इट नेसेसरी टू अटेंड योर सब्सिक्वेंट ऑनलाइन प्रोग्राम टू टेक योर. सी, यू कैन कनेक्ट विथ मी एज ए इंडिविजुअल डिजिटल मार्केटिंग क्लाइंट और एजेंसी ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है. बट मेरे को ये लगता है कि व्हाई डू यू वांट टू कम एंड पे मी thousands of rupees when you can get yourself literate on a couple of hundreds of rupees. नॉलेजेबल बनो, बाद में आके सब्सक्राइब करो. क्योंकि वी वर्क, एज आई से, वी वर्क विथ 900 कस्टमर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो. ओके,
तो वो जो आएंगे हम उनको ये नहीं बोलेंगे कि आपको कोर्स करना पड़ेगा, लेकिन जो लोग पहली बार आ रहे हैं प्लीज लिटरेट, जब आप गाड़ी खरीदते हो सर तो आप पहले टेस्ट ड्राइव लेते हो, उसके बाद में गाड़ी खरीदते हो। आप गाड़ी खरीदना क्यों है आपको? मैं तो बैठा हूँ गाड़ी बेचने के लिए एट द एंड ऑफ द डे, बट व्हेन यू हैव एन ऑप्शन ऑफ टेस्ट ड्राइव योरसेल्फ, एक्सपीरियंस इट एंड देन यू शुड डू इट। तो आप पहले कोर्स के लिए सब्सक्राइब करिए। एनी विच वेज आप मेरे क्लाइंट हो मोहन जी, ओके तो यू कैन एनी विच सब्सक्राइब, यू कैन एनी विच टॉक। मैं मोबाइल पे आप सब लोगों के साथ में अवेलेबल हूँ। I had also given you my mobile number. Please WhatsApp me. Don't call me at this point of time because I'm already started getting quite a lot of calls. WhatsApp पे करो, हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं, एक कम्युनिटी बनाते हैं WhatsApp के ऊपर, and then we can start discussing on that. Is there a total cost for all the programs? So Rajiv Sharma, so I answered that there are individual program because जरूरी नहीं कि आपको हर प्रोग्राम काम आएगा, आपको जो प्रोग्राम सही लगता है वो प्रोग्राम के लिए यूज करिए। So Akshay Swami, I don't know whether he is there or not. He has asked, can we do LinkedIn marketing in B2C? Yes, LinkedIn marketing is also applicable in B2C, but in a different proposition, a different proposal. Please guide, before lockdown, I have sold one thing in X amount, but deal not completed. Now I should reapproach the same person. सी आपका बिजनेस डिसीजन होगा, अगर आप उसको एक्स अमाउंट पे बेच पाओगे तो आपने अप्रोच करना चाहिए। अगर आपने उसको X% डिस्काउंट कर दिया तो इट्स अगेन अनदर अपॉर्चुनिटी सेइंग दैट कि पोस्ट कोविड ये मेरा ऑफर है। इट्स अगेन द पार्ट ऑफ द सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, पोजिशनिंग, हाउ यू वांट टू डू इट अप देयर। Please let me know if we can go over. I will like to take additional marketing for my company. Can we discuss the Mohan Cholkar? Yes sir, Mohan ji, आप मेरे कस्टमर हो, you can always connect with me. How we promote telecom and IT solution product? आनंद भंडारी ने पूछा बिजनेस व्हाट्सएप। सो डेटा है आपके पास में, इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म करिए कस्टमर को, टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए। So I think customer once is updated and when there is a need. So when demand meets supply, when you as a supplier meet up the purchase who's got a demand, a collaboration happens. सेल्स मार्केटिंग का एक बेसिक फंडामेंटल है, राइट टाइम, राइट मोमेंट एंड राइट अपॉर्चुनिटी मेक्स द डील हैपन। अगर मान लो मेरे पास में स्वेटर्स है एंड जो पहले स्वेटर में 3,000 रुपए में बेचता था, मैं उसको 500 रुपए में बेचना चाहता हूँ, बट सीजन इज समर, पीपल विल नॉट बाय फ्रॉम मी। इट्स रॉन्ग पोजिशनिंग, रॉन्ग टाइमिंग, रॉन्ग प्रोडक्ट एंड रॉन्ग मार्केटिंग। So I should hold on. So there should be different ways of doing the marketing. So as I said, marketing evolves even a paper, और आपको डिफाइन करना है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, आप किस तरीके से चीजों को लेकर के चलोगे। So I think there are still couple of more people, 62 people. So I being host doesn't look good. I leave out the session right now. So if you are done with the session, we can always close it up. Yeah, you can start leaving also. So as I said, I will be the, मैं आखिरी पर्सन रहूंगा निकलने के लिए यहाँ से। तो राजेश जी आपने पूछा आई लाइक टू अटेंड, सी अभी सबसे पहले अटेंड करो सेशन, ओके, डोंट गेट इन हरी कि आपको मेरी सर्विस से सब्सक्राइब करना है, प्रोडक्ट लेना है, वो सारी चीजें हम लोग करेंगे। 7 दिन होल्ड करो, 7 दिन बाद में हम डिसीजन लेंगे कौन सा प्रोडक्ट कैसे तरीके से क्या करना है। सो लेट मी ऑल्सो अंडरस्टैंड यू वेरी वेरी क्लोजली, ताकि मैं भी आपको उस तरीके से गाइड कर पाऊँ। सुकेतु ने पूछा है कि व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ ईच सेशन। हर एक प्रोडक्ट सेशन के सामने में प्राइस लगी है, सो यू कैन लुक अप एट इट फ्रॉम देयर। So we are 50 people. So I don't know, 50 लोग हैं अभी, which is a better option, own website or go for Amazon, Flipkart, etc. channels. So depending upon business है कि आपको अपना खुद का वेबसाइट ई कॉमर्स चालू करना चाहिए कि अमेजोन पे जाना चाहिए, आपका सस्टेनेबिलिटी कितना है, आप मार्केटिंग कॉस्ट में किस तरीके से हो, कितने प्रोडक्ट को आप लेके जा रहे हो। क्योंकि वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना एक बात है, लेकिन उसका मार्केटिंग करना दूसरी बात है। अगर आपने बनाने में पैसा खर्चा कर दिया और मार्केटिंग करने के लिए पैसा नहीं है तो इट डजंट मेक सेंस। सो अगेन इट रिक्वायर्स अ वेरी पर्सनलाइज्ड काइंड ऑफ एन अप्रोच। देयर इज नो वन सिंगल आंसर कि मैं आपको बोलूं कि आपने ई कॉमर्स बनाना चाहिए कि अमेजोन। बट जब आपका काम पहले अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे सेल करके चलता है तो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर। डोंट बी इन अ हरी ऑफ स्पेंडिंग लैक्स ऑफ रुपीज मेकिंग ई कॉमर्स वेबसाइट। कई लोग 50,000 में 60,000 रुपए में ई कॉमर्स बनाते हैं, वो वेबसाइट नहीं चलती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, वो आपके अफोर्डेबल प्राइस, आपके कन्वीनियंट प्राइस में आपको बना के तो दे देंगे, लेकिन चलेगी नहीं। इट इज समथिंग लाइक कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी पोजीशनिंग क्या है, और आपके प्रोडक्ट को किस तरीके का इंटीरियर चाहिए,
तो इंटीरियर मतलब वो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म, उसका यूजर इंटरफेस, उसका डिजाइनिंग, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके फीचर्स, उसके फंक्शंस, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है. तो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन. आपको अगर है क्वेश्चन तो यू कैन स्टिल पुट इट अप. आई विल जस्ट ट्राई. अक्षय, आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर योर क्वेश्चन. So someone said we like to, so Ashish sir school. So there is nothing like school. Okay, I am not a teacher. सिर्फ जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा. और मेरे को ऐसा लगता है कि on a scale of 0 to 100, I don't know how much I have, but I will be very transparent, very open. Whatever I have, I'll tell you yes. If I don't know something, I might always tell you no. Okay, I might get back to you because कोई ऐसा है नहीं जिसको पूरी चीज का ज्ञान है. But yes, with 19-20 years of experience to an extent, 85-90% of your queries could be solved by me on the group. And then I have a big technical team to help me also. I'm not a technical person, I am a marketer. तो मैं आपके मार्केटिंग लॉजिक्स के साथ बात करूंगा और टेक्निकल सेशंस में हम लोग बात कर सकते हैं कि इनको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए. तो इंटरनेशनल फार्मा मार्केटिंग कैन बी यूटिलाइज्ड व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म. खालिद एमडी में, हाँ, सी व्हाट्सएप मार्केटिंग, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड. फेस मैंने बात किया व्हाट्सएप, मैंने बात किया फेसबुक, लिंक्डइन, ईमेल, ये प्लेटफॉर्म से आपके बिजनेस का कोई लेना देना नहीं. ये एक ट्रांजैक्शनल प्लेटफॉर्म है जो आपके कंटेंट को दूसरी जगह तक लेके जाता है. ओके, आपको देखना है कि ये आप सी, जब आपको एज ए जाना होता है पर्सन, तो आप इंडिविजुअली जाना है तो आप 2 व्हीलर पे जा सकते हो. 5 लोगों को जाना है तो आप कार में जाते हो. 50 लोगों को जाना है तो बस में जाना है. जब आपको आपका माल एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको ट्रक या टेम्पो लगता है. तो ये जो है ना, ये व्हीकल्स है. आपका ऑब्जेक्टिव आपको डिफाइन करना है और बेस्ड ऑन दैट वी विल बी एबल टू सजेस्ट यू आपने कौन सा व्हीकल लेना. बट एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल, वेबसाइट, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया का ये व्हीकल लगने वाला है. जैसे एक गाड़ी बनाने में हजारों पुर्जे लगते हैं, उसी तरीके से आपके बिजनेस कम्युनिकेशन करने के लिए ये 15, 20, 25 जो टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म हमने बात किया, ये सारी चीजें लगने वाली है. Can we get a recording? Recording is available. I will send you the link also. But more than recording, I don't think इसमें कुछ repeat ऐसे सुनने लायक है. But I'll share with you. So that's absolutely not an issue at all. So I think we are still 44 people over here. Let me know if you're done. Then we can just close it. If you have any question, yes, please ask me a question. I'll try to answer. If your questions are done, I'll be more than happy to close the session. Thank you, Edward. Pooja ने पूछा है, how can we use social media for service company like logistic company? So logistics में we'll have to define what kind of a logistics do we have. So social media, so I don't know पूजा की logistics मतलब तुम डिलीवरी की बात कर रही हो, तुम्हारे ट्रक्स है, तुम्हारी ट्रैवल कंपनी है. ओके, अगर आपके ट्रक है, ट्रैवल कंपनी है, तो यस, this is a big time. And I'll tell you, logistics is going to be a key business runner at this point of time. Freight forwarding agency. Yes, people will have to transact the transaction from one place to another places. तो ये टाइम बहुत जरूरी होगा. उनको अपना माल भेजना होगा, उनको अपने ऑफिस के सामान शिफ्ट करने होंगे. अभी जैसे मेरे कंप्यूटर ऑफिस में जितने कंप्यूटर आए, हैव टू इंश्योर नाउ फॉर विद वर्क फ्रॉम होम, आई हैव टू इंश्योर दैट सब लोगों के कंप्यूटर, सब लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर के घर पे पहुंचे. तो लॉजिस्टिक्स कंपनीज वुड बी रिक्वायर्ड. यस, सर्टेनली यस, because we understand now 70% of my staff is going to work from home. तो जब ये लोग काम करेंगे तो लॉजिस्टिक्स लगेगा. ओके, अभी मान लो कि अभी बड़ी सारी कंपनीज है, जो छोटी कंपनी ऑफिस में मूव होंगे तो लॉजिस्टिक्स लगने वाला है. लोग जब डिलीवरी करने प्रोडक्ट परचेस करेंगे, लेकिन डिलीवरी करने अगर डिलीवरीज उनको चाहिए लोगी तो लॉजिस्टिक्स लगे. तो लॉजिस्टिक्स इज गोइंग टू वेरी वेरी क्रिटिकल रोल इन कमिंग डेज. या आपको यही देखना है कि यू शुड यूज सोशल मीडिया to talk about कि how safe is using your logistics service or freight forwarding. कि आप, क्योंकि अभी कोरोना टच होने से लगता है, तो there are lots of myth and fact about कोरोना. तो आपको सिर्फ इतना ही लोगों को बताना होगा कि आपका logistics company takes care of what kind of an hygiene when you take care of the deliveries. So Sanjay Bhandari has raised her hands. So Sanjay ji, you have any question? You can ask me.
I'm not sure. Suyash ji, thanks a lot very much for joining the session. Rupesh ji, dhanyawad. You are from Hyderabad. Thank you for joining. Ranjit P, a call center owner. Thank you, Ranjit ji, for joining the session. I hope I was able to add some value. Rajesh Hirdharmani. Thank you, sir. अगर ये हो चुका है, मुरली भाऊ, thank you for joining the session. It was pleasure to have you. So I think question seems to be over, so we can close down the session now. Thank you. I had given you my WhatsApp number. You can connect with me on one-to-one over WhatsApp. More than happy to discuss things with you. Join for other sessions so that we can help you understand individual technologies on one day, one session. Thank you. Okay, so I officially close now this Zoom meeting. Thank you very much. Thank you, Bharat Bhai, for joining and among the people who were first to join. Thank you very much. I'm just closing up the meeting now. Thanks.